I will be recording this session. उसके बाद हम लोग इसको YouTube में we will put and I will send you all a link because in case someone has to leave या someone is not able to continue or if someone joins later for them to have an idea of how to do or what is it about. ये जो today's session will be mainly focusing on what is Vika in terms of if you say paganism, then paganism. Then if you say कि as Vika, Vika क्या होता है? Because बहुत लोगों को बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हमें विका करना चाहिए, क्या हमें हुडू करना चाहिए कि नहीं, और whether you know it is good for us, whether it is our calling. Because कभी कभी क्या होता है, we don't understand कि ये हमारा calling है कि नहीं है. That is the main thing where we go wrong. 1 minute. All right, so and one more thing, what I will be doing is I will put you all on mute when I start, and then once I finish a particular topic, jisko doubts hai, you can ask me those doubts after I am putting on, you know, when I remove you all from mute or when I say now you all can ask. So we will start with Vika only first because for me my journey started in Vika. So मैं पहले Vika से ही शुरू करूंगी and then I will give you all a small just on Hoodoo. मैं Vika के लिए भी मैंने थोड़े tips बना के रखे हैं which you all can try in your daily lives, और मैं Hoodoo के लिए भी tips दूंगी which you all can try. And last में मैं सिर्फ एक ही चीज आई विल एंड द सेशन एज कि हुडू और विका इन दोनों में से क्या करना चाहिए, और अगर दोनों करना चाहिए तो किस हिसाब से करना चाहिए, और अगर कुछ भी एक कॉलिंग है तो व्हाट इज द यूज ऑफ द कॉलिंग. दिस इज हाउ द सेशन इज गोइंग टू गो. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई विल स्टार्ट विथ विका बिकॉज जैसे मैंने बोला विका इज वेयर मैंने अपनी जर्नी तो आई हैड स्टार्टेड एज अ टैरो रीडर एंड एज अ प्राणिक हीलर विच वाज आई थिंक 2006-7 टाइम में मैंने उस टाइम पे शुरू किया था, बट somewhere towards the lane. But before I start my journey, I want to today talk about a small story on the person who is actually behind Vika, जिन्होंने विका शुरू किया था या जिनके वजह से आज पूरी दुनिया में लोग विका जानते हैं. Because somewhere maybe some of my students have joined who have already done Vika with me, who have already done Hoodoo with me. They will be able to interlink why Vika has been so much of a top priority for me or so close to my heart, where you know I feel ki a journey is incomplete without Vika. ठीक है, 1 second. हाँ जी, sorry, so I had to put a mute. So now Vika actually 2000 सालों से भी पुराना एक मोडालिटी है. इट वाज एन अकल्टिज्म मोर देन 2000 years back, but many people didn't know. तो उसके बाद there was this guy called as Gerald Gardner. ठीक है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट के टाइम, ड्यूरिंग हिज रिटायरमेंट टाइम ओनली, he wanted to spread this Vika everywhere and around 1939 or something. उसी टाइम में इनको लगा था कि इनको ये चीज स्प्रेड करनी चाहिए, लोगों को विका के बारे में पता करना चाहिए. बहुत सारे लोगों को लगता है कि विका इज मे बी देयर इज नथिंग कॉल्ड एज विका करके, और विका इज अ मैन मेड रिलीजन करके, एंड विका हैज कम ओनली थ्रू एन अननोन सोर्स. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. विका में अगर मैजिक है तो मैजिक है. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैजिकल है. ठीक है, तो मैं पहले इसलिए आई एम स्टार्टिंग विद जेराल्ड गार्डनर स्टोरी. सो ही स्टार्टेड हिज वर्क्स एंड ही रिटायर्ड. पहले उन्होंने एक अलग सा एक थोड़ा सा एक जगह लिया where he can gather all the people who have retired. So he started with all, you know, bunch of Buddhas and Buddhis who have all retired and you know they want to enjoy life, but he wanted them to know that life is magical even after you retire. So inka he was trying to do everything, and then he used to go to the forests and he used to अपने coven members के साथ जाते थे, सब करते थे. It is said that one day suddenly I will first mute you all. Sorry, I forgot to mute you all. All right. तो एक बार क्या हुआ था? In the middle of his sleep, he says he was. It was in his books. उनके Book of Shadows में ये लिखा गया है कि उनको किसी ने लेके गए थे forest में, and they had, you know, kept him naked there, and they had done some initiation. That was the first time he heard the word Vika in his ears. This is what he said, because generations ago, ages ago, विका का इनिशिएशन, विका का जो भी रिचुअल्स करते थे, ये लोग सब फॉरेस्ट में जाके नेकेड होके करते थे. नाउ वी आर नॉट
age old tradition, we are modern age Wiccans. So nakedness or going to the forest is all completely not possible. तो उस टाइम पे वो वैसे जाते थे. And he asked the person who initiated him, can I tell the world about you people? So that time उन्होंने बोला था कि नहीं, आप नहीं बोल सकते हो. उसके बाद ठीक है, ये वापस आ गए, ये मैजिकल राइट्स करते गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज पे विश्वास ही नहीं था. दो इनके पास इनके साथ बहुत लोग जुड़े, इनको बस एक ही चीज था कि मेरे मरने के बाद विका मर न जाए कहीं. ओके, बट विका शुड नॉट डाई आफ्टर आई एम नो मोर. Now, at that time, हिटलर का बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड. And he used to stay in London and in Britain. In British he used to stay. तो उस टाइम पे the Hitler was supposed to invade the Britain country. तो उस टाइम में क्या हो गया था, हिटलर उस टाइम पे जेराल्ड गार्डनर ने वहां के गवर्नमेंट को बोला था कि आई विल डू मैजिक सो दैट the invasion doesn't happen in our part of the country. मतलब हमारे ब्रिटेन में, हमारे लंदन में इन्वेशन ना हो. किसी ने भी उनके बात पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, फॉरेस्ट में जाके क्या होगा. इट वॉज लाइक no one believed him. Now he went with his group of people and कवन का रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि जो लोग विका करते हैं उनको पता होता है कि हाउ अ कवन टुगेदर कैन कंबाइन एंड डू रिचुअल्स टुगेदर एंड ऑल दैट. तो ये अपने ग्रुप के साथ जाते हैं, एक कैंप फायर बनाते हैं बीच में इन द ओपन फॉरेस्ट. ही पुट्स अ कैंप फायर and then all these people, they dance in the circle and then they create a cone of fire. All right, now that is a way which is done in Wicca. तो वो cone of fire create करते हैं और वो सीधा बोलते हैं कि मैंने उस cone of fire को डाल दिया कहां पर, towards Hitler. Now if you google the facts and see, it is said that Hitler tried to come but he couldn't come so far and suddenly he backed off and he went. मतलब कि हमारा जो जो भी जेराल्ड ने किया, ठीक है, उसने क्या किया ये गवर्नमेंट को नहीं पता ना. अभी कहते हैं ना कि जब आप भला करते हो ना, भले का भला कभी नहीं होता है. द गवर्नमेंट स्टार्टेड गेटिंग स्कैर्ड ऑफ विकेंस ओवर दैट कि ये लोग इतने पावरफुल हैं, ये लोग तो हमें कुछ भी कर सकते हैं. जो हिटलर, जो किसी की बात नहीं सुनता है, जो हिटलर कभी भी किसी का नहीं उसने माना है, वो खुद वहां पर नहीं आया, तो मतलब कुछ तो बड़ा है. So people the government started getting scared. उसके बाद एक दो विकेंस की हत्या की गई. lot of massacres happened. बहुत सारा. and वो जो वर्ड था विका, वो बहुत एक सीक्रेटिव लैंग्वेज की तरह बन गया. लेकिन मैंने आप सबको क्या बोला था कि जेराल्ड ऑलवेज वांटेड दैट आफ्टर आई डाई विका डजंट डाई. Okay, because why I'm saying students who have done Vika from me, they know is because I'm very closely attached to Vika. मेरे लिए मेरे बाद भी Vika should be known, and Vika should be known that Pinky Punjabi was an amazing high priestess who used to teach Vika beautifully. Because somewhere I have that thing what Gerald used to have. तो उनको था कि Vika का नाम कभी भी ना मरे. Then what he did, he saw nothing is going. उन्होंने सीधे BBC के न्यूज में he went openly and he had an interview over there. कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट विका. वहां पर भी उनको उनका मजाक बनाया गया. मजाक क्यों बनाया गया? बिकॉज ओनली थिंग वॉज कि ये अपने सारे कवन मेंबर्स को फॉरेस्ट when they used to go to the forest, they used to go nude and they used to do the dancing and everything. तो ये सब ये मस्ती मजाक चल रहा है, बूढ़े हो गए, सच गए, like this is what happened. Then slowly people started understanding Gerald and people started coming to him. There were so many people whom he initiated, and till today, when you talk of who is the founder or father of Wicca, it is Gerald Gardner. तो वो जब आए थे उनके पास ना पैसा था. इनफैक्ट उनका बचपन भी बहुत बहुत ट्रबल से गुजरा है. उनके माँ बाप ने उनको डिसोन कर दिया था क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज होते थे. उनको कभी भी वापस नहीं लाया गया अपने फैमिली में. विथ हार्ड वर्क, ओनली डिटर्मिनेशन ही हैड वाज कि एक गॉड होती है और एक गॉडेस होती है और हमें उनको फॉलो करना है और हमें जिस गुरु ने उनको इनिशिएट किया था उनके कदमों पर चलना है. एंड ही बिकेम रियली सक्सेसफुल. जो भी आज मैंने आप लोगों को बोले हैं वो सारे फैक्ट्स यू कैन चेक ऑनलाइन, यू विल फाइंड इन द स्टोरी. बहुत सालों के बाद आज भी लंदन के एक बहुत फेमस और एक बहुत बड़े बैंक में उनका बुक ऑफ शैडोज लॉकर के अंदर बहुत संभाल के रखा गया है. बिकॉज विका एक्चुअली इज मैजिक. नाउ अगर कोई आपसे पूछता है कि ये क्या मैजिक है, एक चीज मैं आप सबको बताऊंगी. हाउ वी आर बोर्न, what
how we come, how we die, how things change now. If all this is magic, then Vika is also magic. क्योंकि हमें आज तक नहीं पता, क्योंकि उनसे ये सवाल किया गया था कि मैजिक क्या होता है, तो ही आस्क्स देम आप कहाँ से आए. Scientifically ठीक है, sperms don't, in the womb and everything, but who created you? Do you know from where you came? If there is a sun and if there is a moon, which we don't know from where it comes, it just comes from planets. We say planets है, sun निकलता है, वो है, लेकिन वो planets कैसे हुआ वो किसी को पता है? किसी को नहीं पता है. So when there is a sun and a moon, when there is a sun rising and a sun setting, then till that there is magic. लेकिन ये विका फेमस है, अभी विका इज फेमस एवरीवेयर, लेकिन हाउ इट इज, विका के लोग डेविल वर्शिप करते हैं, विका के लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, विका के लोग चुड़ैल होते हैं, या बहुत बुरे लोग होते हैं. एक ही चीज मैं हमेशा मेरे सारे लाइव्स में भी बोलती हूँ, अगर एक बंदे को या बंदी को भला करना है तो वो किसी मोडालिटी से भी कर सकता है, अगर बुरा करना है तो उसके लिए एक रेकी भी काफी है. लेकिन विका में हम लोग क्यों कभी भी, फर्स्ट थिंग इज, ये डेविल मैजिक का टर्म कहाँ से आया? बिकॉज मैंने आप सबको बोला था कि पीपल, द गवर्नमेंट स्टार्टेड गेटिंग स्कैर्ड ऑफ जेराल्ड, क्योंकि उन्होंने हिटलर जैसे आदमी को दूर कर दिया, तो ही इज केपेबल ऑफ एनीथिंग. तो वो डर के वजह से, एंड उस टाइम पे बहुत सारे क्रिश्चियनिटी इंस्टीट्यूशंस को भी एक डर लग गया कि दे आर बिकमिंग मोर पावरफुल, बिकॉज एक रिजल्ट दिखा दिया, समथिंग व्हिच वाज नॉट पॉसिबल वो दिखा दिया. तो वहां पर ये लोग लेके आए दैट दे आर वर्शिपिंग द डेविल. लेकिन अगर जो भी विका फॉलो करते हैं, एटलीस्ट जो मुझसे फॉलो करते हैं, एक ही चीज मैं बोलूंगी, वी आर स्ट्रिक्टली पीपल हु से नो टू डेविल वर्शिप, एंड वी ऑल्सो फॉलो द थ्री फोल्ड लॉ. थ्री फोल्ड लॉ विका में जो भी इनिशिएशन के लिए आते हैं उनको ये बोला जाता है कि आपको ओथ लेना पड़ेगा कि आप किसी का बुरा नहीं करोगे, लेकिन अगर आप बुरा करते हो तो एक चीज याद रखना, इफ यू डू बैड, बैड इज कमिंग बैक टू यू 3 times, and if you do good, keep doing the good, but when you do bad, it is coming back 3 times. And there is a clear no in block letters in devil magic and in negative magic in Wicca. हम लोग लेवल 2 में जब लोग आते हैं, हम लोग लेवल 2 में उनको क्या सिखाते हैं, ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करते हैं वो सिखाते हैं, कैसे करते हैं वो नहीं सिखाते हैं, क्योंकि करने का तरीका हमें नहीं चाहिए. एंड ऑफ द डे वी आर पीपल हु वांट टू डू व्हाइट मैजिक, राइट? लेकिन विका क्यों, क्यों 3 साल, क्यों, why is it taking 3 years? लेकिन I will tell you something. When I started my journey, अगर आप लोग भी मेरा YouTube वीडियोस देखोगे 2014 में, 2013 में, you will find me a very weak person, you will find me very dull person, कि Vika makes you stronger. Now when I say Vika makes you stronger, Vika में आपको stronger, confident, क्योंकि हम लोग नेचर के साथ ब्लेंड होते हैं, हमारे गॉड गॉडेसेस होते हैं. जब आप लोगों का विका लेवल 1 में इनिशिएशन होता है, आपको एक मैजिकल नेम दिया जाता है, एक दीक्षा दी जाती है. उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ऑल दो सिनेरियोज इज यू बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग एंड यू बिकम वेरी केपेबल. You become a person who can handle anything and everything. But mainly विका क्यों सीखते हैं, क्योंकि एक चीज है, हमें हमारे लाइफ का पर्पस मिल जाता है, and we are able to use our magical names and the blessing of our high priestess and high priest and bring in magic in the life of others. लेकिन पहले हम लोग अपना अलाइनमेंट करते हैं. पता है, इनिशिएशन के टाइम बहुत सारे टाइम ऐसी चीजें होती हैं जहां पर लोगों को खुद, जब मैं इनिशिएशन देती हूँ, उनको दिखता है कि वो किसी जन्म में बैठे थे मेरे साथ ही और उनका इनिशिएशन चल रहा था एज अ विकन. Because if you have selected Vika, then you must have been a Wiccan in one of your births. But why that journey got incomplete? Journey incomplete क्यों हुई? क्योंकि उस birth में, जैसे मेरे 2-3 केसेस में बताऊंगी, मैंने किसी को जब इनिशिएशन दिया था, मुझे पता चला था कि वो मेरी ग्रैंड डॉटर थी उस बर्थ में. तो अभी वापस क्यों आई है? क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था, मेरी ग्रैंड डॉटर को प्रॉमिस किया था कि मैं उनको विका की हाई प्रीस्टेस बनाऊंगी, लेकिन मेरे ओल्ड एज की वजह से मैं उस बर्थ में गुजर गई थी. So now, why the rebirth has happened? So that she becomes a high priestess. Understood? So ऐसी बहुत सा, एंड कभी कभी जैसे कुछ लोगों को लगता है कि आप मेरे साथ थे और आप मेरे साथ वहां पर उस टाइम पे यही इनिशिएशन चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग थे. इनफैक्ट कभी कभी कैसे आता है कि फॉर एग्जाम्पल 3 of them are together and they who have come उस टाइम पे विका के लिए आए, एंड उन्होंने अपने आप को वहां पर देखा है.
समझ में आया? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है इनिशिएशन के टाइम, जहां पर हमें पता चलता है कि हम लोग इस चीज के लिए बने हैं और हमारा यही कॉलिंग था। लेकिन अगर, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, वी डोंट डू डेविल का थिंग, राइट? हम लोग विका में क्या फॉलो करते हैं, ठीक है? एथिक्स ऑफ विका। एक चीज है गॉड गॉडेस, yin yang मान के चलो, मेल फीमेल, जैसे शिव पार्वती, ठीक है, विष्णु लक्ष्मी, बराबर। उस तरह से हम लोग विका में भी वी फॉलो ऑलवेज द गॉड एंड द गॉडेस। और हमारे इसमें एक ही चीज होता है, विका क्यों होता है, हमारा ये जो क्लैरवॉयंस लेवल है आगे बढ़ता जाता है, वी बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। मैंने आई थिंक पीपल हु हैव बीन इन विका विद मी, जिन्होंने मुझसे विका सीखा है, दे ऑल नो इन माय लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग इन माय लाइफ। अगर आप पूछोगे आपका डिवोर्स हुआ है, हाँ हुआ है, आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, हाँ मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आपने क्या कुछ नहीं सहा है, बी इट मोलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज, एवरीथिंग। लेकिन जब मुझे मेरी गुरु मिली विका में, आई कुड सी दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल चेंज इन माई लाइफ। मैंने, मेरे गुरु ने सिर्फ एक ही बोला था, अपना 3 साल मुझे दे दो और जो जो मैं बोलती हूँ वो ही तुम करते जाओ, सवाल मत पूछना कभी भी। 3 साल बस मुझे दे दो और काम करते जाओ। तब जब मैंने उनको अपने 3 साल दिए थे, मैं ये सच बोल रही हूँ और मैं बहुत गर्व से बोल रही हूँ कि आज भी मैं कहती हूँ, मेरे गुरु का कहा पत्थर की लकीर है। अगर मेरी गुरु बोलती बालकनी से कूद, तो मैं कूद भी जाती, आई वुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन उनका कहा मैंने माना, बहुत शिद्दत से मैंने माना। लेकिन आज जो लेडी 2009 में सुसाइड कर चुकी है, जो लेडी 2005-6 में अपने लाइफ को गिव अप कर चुकी है, एंड जिसको ये भी ताना मारा गया था कि तुम्हारे पास तो ना घर होगा, कुछ भी नहीं होगा, आज मैं अपने खुद के बंगले में बैठी हूँ। इट्स ओनली बिकॉज कि मैंने सिर्फ एक ही चीज की शिद्दत से गुरु को फॉलो किया। 3 साल उन्होंने मुझे बोला देने के लिए, मैंने उनको अपना 3 साल दिया। कभी कभी लगता था ये क्या हो रहा है, क्यों मैं हुडू बाद में लेके आई, वॉज द रीजन। आजकल के जमाने के जो तुम सब लोग यहाँ पर जो मेरे ऑनलाइन के बच्चों हो ना, उनको ऐसे मैजिक चाहिए। मतलब आज शुरू किया, कल मैजिक दिखा, ठीक है? ग्रोथ चाहिए, मतलब कि मुझे क्लेयरवॉइंट बनना है, स्ट्रांग बनना है, सब बनना है, लेकिन मैजिक भी तो चाहिए। अभी आज मैं इतना पैसा देके कोर्स खरीद सीख रही हूँ, और थोड़ा मैजिक आ जाए ताकि मुझे, मैं बाकी और कोर्स सीखूं ना। फॉर दैट इमीडिएट इंस्टेंट मैजिक इज ओनली हुडू। मैं हुडू के बारे में भी बताऊंगी, ऑल राइट, बिकॉज मैंने अपने लाइफ के पहले जो डेडिकेशन दिए थे वो मैंने विका को क्यों दिया था 3 साल। मैंने भी बीच में सीखा था। मैं तो कभी कभी अपनी मैम को बोलती थी कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ बैठ के सीख रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे मेरे घर पे लोग सवाल कर रहे हैं कि पता नहीं पूरा दिन पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती लिखती रहती है। तो हुडू इज वेयर यू ब्रिंग इन मैजिक, क्योंकि आजकल देयर इज नो पेशेंस लेवल लेफ्ट। उस टाइम पे हम लोगों के पास चॉइस नहीं था। मेरी गुरु बोलती थी पहले ये करो उसके बाद ये। आज अगर मैं बोलूंगी कि पहले ये करो, तुम बोलोगे ठीक है चलो भाड़ में जाओ, पिंकी पंजाबी नहीं तो और सही, देखते हैं कौन और सिखाता है, जाके सीख लो, मैजिक चाहिए फिर। अंडरस्टूड द डिफरेंस। नाउ दैट इज वेयर दी हुडू स्टार्टेड बिकमिंग वेरी फेमस। क्योंकि विका में क्या होता है, 3 साल में अगर आप विका देखोगे, 3 साल में आप अपने आप को मुझसे भी ज्यादा आगे जाते हुए देखोगे। क्योंकि विका आपको नेचर से कनेक्ट करता है, आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, आपकी मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है। लेकिन हुडू आपको कमाने के लिए सारी चीजें देता है। कि आज मैं विका, अगर मेरा 1 साल विका चल रहा है, मैं विका के साथ तो क्लाइंट्स नहीं ले सकती, आई कैन नॉट टेक क्लाइंट्स विद विका। आई कैन गिव देम ऑयल्स, आई कैन डू समथिंग विद माय मैजिकल नेम, बट आई कैन नॉट टेक अप क्लाइंट्स। लेकिन हुडू के साथ, आज हुडू खत्म किया, 1 हफ्ते में श्राइन्स मिले, जाओ जाके बच्चों क्लाइंट्स ले लो, और क्लाइंट्स को भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बिकॉज हुडू इज अगेन अ वेरी डिफरेंट मोडालिटी, डिफरेंट सिस्टम। दैट इज द रीजन हुडू। लेकिन विका इज वेयर आपका एक स्थिर बन जाता है। हमें चाहिए ना लाइफ में स्टेबिलिटी, भटकती आत्माएं नहीं बनते हम लोग विका में। विका में वो एक स्थिरता, एक दृढ़ता हो जाती है कि यस यू आर नाउ सेट। एंड अगेन एज आई सेड, जैसे हम लोग एथिक्स फॉलो करते हैं, 3 4 लॉ हम लोग मानते हैं, डेविल वर्कशिप नहीं करते। एक ही चीज मुझे विका में पता है क्या पसंद है, हम लोग एक कवन बन जाते हैं, एक फैमिली बन जाते हैं। हाँ मैं मानती हूँ फैमिली में सब लोग एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइफ लॉन्ग के लिए साथ बन जाते हैं, कुछ लोग लाइफ लॉन्ग के लिए एक ही साथ ट्रैवल करके चलते हैं। तो वाई अ कवन, वाई नॉट अ सॉलिटरी। बहुत बहुत लोग मुझे पूछते हैं पिंकी जी आप बोलते हो चेन्नई आओ विका सीखने के लिए, आप हमें ऑनलाइन सिखा दो और आप हमें सॉलिटरी वीकेंड बना दो। मतलब सॉलिटरी वीकेंड इन द सेंस वेयर आई कैन प्रैक्टिस ऑन माई ओन। एक ही चीज बोलूंगी मैं,
नसीब वाले वो होते हैं जिनके सर पे गुरु का हाथ होता है, बराबर। तो कवन इज बेसिकली गुरु का हाथ लाइफ लॉन्ग। मैं भी एक कवन में थी। आज मेरी गुरु जिंदा नहीं है, लेकिन आज भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है मेरी गुरु का हाथ मेरे सर पे है। सो आई ऑलवेज हैव दैट फील दैट नो माय गुरु इज ऑलवेज देयर विद मी। वेन एवर आई कॉल ऑन हर शी विल बी देयर, शी विल सपोर्ट मी। सो दैट इज व्हाट इज अ कवन। एंड कवन में क्या होता है, एक नए नए सेट ऑफ भाई बहन बनते हैं। मान के चलो आज मैं मुश्किल में हूँ, मतलब मैंने द स्टूडेंट्स मुश्किल में, वो अपनी बहन को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने भाइयों को बोल सकते हैं कि मेरे लिए एक प्रेयर कर दोगे, सब लोग साथ में। एंड कहा जाता है व्हेन यू डू अ कंबाइंड प्रेयर, कभी कभी जब घर में कोई बीमार पड़ता है, घर के सब लोग जाके प्रे करते हैं, बराबर। क्योंकि जब 10 लोग प्रे करते हैं तो उसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हो जाती है। सो द सेम वे व्हेन द कवन टुगेदर प्रेज, देन दैट इज पावर, दैट इज स्ट्रेंथ। एंड मोर ओवर पूरा कवन एक फैमिली बन जाता है जिसकी माँ मैं हूँ, और सारे बच्चे भाई बहन है आपस में, चाहे फ्रेंड्स हो जो भी हो, बट सबकी माँ एक माँ होती है। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, माँ का हाथ और गुरु का हाथ बहुत नसीब वालों को मिलता है, और जिसको वो नसीब होता है, इट इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। माँ है मेरे साथ, और वो मेरी माँ मेरी गुरु भी है और मेरी माँ भी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन विच पीपल हैव। दैट इज द रीजन विका, क्योंकि विका में वी फॉलो, और मैं ट्रेडिशनल विका ही फॉलो करती हूँ। Many people have asked me, come to Bombay and teach, come to Delhi and teach. In fact, people पता क्या बोलते हैं, we will arrange 50 students for you, come and teach, आप सिर्फ आ जाओ। बट मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे यही बोला है कि people should go in search of knowledge, knowledge should never go in search of people। हमेशा मेरी मैम ने मुझे ये बोला है कि तू डिसाइड कर ले कि लोग नॉलेज को ढूंढते ढूंढते तेरे पास आए, कि तू लोगों के पीछे पीछे जाके बोलेगी मैं दिल्ली में हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, विकास सीखने आ जाओ। बाकी के कोर्सेस मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे सिर्फ यही बोला था कि तुम कहीं पर भी, यू विल नॉट गो इन गिविंग नॉलेज। अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो उनको वो हार्ड वर्क करने दो। मान के चलो, अगर मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, मैं पावरफुल बनना चाहती हूँ, मैं लड़ूंगी दुनिया से कि मुझे सीखना है, मैं लड़ूंगी घर वालों से कि मुझे जाना है, मुझे सीख के आना है। दैट इज द ओनली रीजन वाई विका अलोन आई डोंट कम एनीवेयर एंड आई टीच। क्योंकि मेरे गुरु का कहा मेरे लिए पत्थर की लकीर था, और मेरे गुरु ने यही बोला था कि एक एक शिष्य गुरु के खोज में जाना चाहिए, ना कि गुरु शिष्य के खोज में जाए। जिस दिन एक गुरु शिष्य के खोज में जाएगा, उस दिन ये समझ लो कि गुरु को अपने ऊपर विश्वास नहीं है और उसको अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। अंडरस्टूड? दैट इज द मेन रीजन वाई ओनली विका, whoever tells how many, आप 50 नहीं 100 स्टूडेंट्स भी अगर आप बॉम्बे दिल्ली में रखोगे, इवन देन आई विल नॉट कम एंड टीच, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज। तो ऑनलाइन क्यों नहीं आप सिखाते हो? क्योंकि ये अगला सवाल, ये सवाल तो बहुत बार आता है। एक ही चीज समझ लीजिए, जिस चीज के लिए दीक्षा इन पर्सन होनी चाहिए, वो इन पर्सन होने से ही आप सबको लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं वो सही है गलत है, बिकॉज आई एम नो वन टू जज एनीवन। मेरे लिए विका की दीक्षा इन पर्सन अपने गुरु के साथ रह के करना ही जरूरी होता है। इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को बाहर भी रहने नहीं देती हूँ। जब वो विका का 3 दिन चलता है, दे स्टे विद मी। मैं बोल देती हूँ कि आई कैन नॉट, मैं तुम लोगों को बेड वेड नहीं दूंगी, गद्दे वद्दे बिछा लो। सब लोग एक जैसे शादी के घर पे जाते हैं, सब लोग गद्दे वद्दे बिछाते हैं, सब सो जाते हैं, खाना वाना सब मैं अरेंज करती हूँ, बट दे स्टे विथ मी फॉर दोस 3 days। आई डोंट इवन टेल देम टू टेक अप अ होटल और कहीं पर जाके रह के क्लास आके सीखने नहीं। क्योंकि मैं वो मानती हूँ कि गुरु के यहाँ रह के जितना भी, गुरु का घर भगवान का मंदिर होता है। तो व्हेन यू स्टे इन द गुरु का घर, यू आर स्टेइंग इन द मंदिर फॉर 3 days, एंड अगेन दैट इज एन इनडायरेक्ट ब्लेसिंग। अंडरस्टूड? सो इफ यू फील, एंड विका किसको कॉलिंग आती है? कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ना पता था ये होने वाला और ये हो गया। तो उन लोगों के लिए विका इज लाइक अ कॉलिंग। मेनली पता है विका किसकी कॉलिंग है? जिसने लाइफ में इतनी मुसीबतें देखी हो कि मुसीबत तो, इससे ज्यादा मुसीबत कोई देख ही नहीं सकता है, वो तो विका में आता है। ये मैंने ही नहीं, मेरे यहाँ पर यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स हु हैव कम टू मी फॉर विका हैव कम जब लाइफ में अभी हो गया, अभी आर या पार, इसके बाद कुछ नहीं है, तभी विका आपको बुलाता है कि लाइफ में सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, कुछ भी देखने को नहीं बचा है। कभी कभी लोग लोग बोलते हैं कि पिंकी जी, मुझे विका करना है, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जिंदा ही क्यों। तो मैं बोलती हूँ आ जाओ, तभी समझ में आ जाएगा कि जिंदा क्यों हो। क्योंकि दैट इज व्हाट इज
यू नो व्हेन वी वर्क विद विका, कि लाइफ में जब सब देख लिया, कुछ भी देखने के लिए बाकी नहीं है, बस एक ही चीज बाकी है कि भगवान गुरु माँ हमारे सर पे हाथ रखे और हमारी लाइफ आगे बढ़े, मैजिक शुरू हो, देन दैट इज ओनली अ कॉलिंग इन विका। वरना विका की कॉलिंग नहीं आती है। बहुत सारे लोग व्हेन दे रिटायर दे कम, क्योंकि जब काम करते हैं नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे लोग बच्चे होने के बाद आते हैं। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि शादी से पहले कर लो, बाकी बाद में बच्चे बच्चे हो गए तो वी कैन नॉट कम, वी कैन नॉट स्पेंड टाइम। सो बट ये सारी कैटेगरीज होती है ना, लोगों ने कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। एंड अगेन विका कम्स एज अ कॉलिंग इफ यू आर वेरी कंपैशनेट, कि आपको हर कोई धोखा दे सकता है, लेकिन आप किसी को धोखा नहीं दे पाओगे। पूरी दुनिया आपको धोखा देगी, और जो आपको धोखा देके जाएगा, वापस जब आएगा ना, आप उसको अपना लोगे कि ठीक है चलो माफ किया उसको। दैट इज ऑल्सो वन थिंग, बिकॉज विका बिलीव्स इन कंपैशन, विका बिलीव्स इन not harming or cursing someone who has done harm to you. And at the same time विका में एक और चीज भी होता है कि you what you want in your life is what you spread. So when you spread magic, your life becomes magical. आपके लाइफ में अपने आप ही मैजिक आ जाती है। एंड हम लोग हमेशा विका में एक ही चीज फॉलो करते हैं, गुरु जो कहता है वही सही है, और हमेशा अपने गॉड एंड गॉडेसेस को ऑनर करते हैं, उनके बिना नहीं जाते। विका में बहुत लोग मेडिटेशन में भी विश्वास करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन क्यों, टू मेक अस पावरफुल, टू मेक अस क्लेयरवाइंट, हमें क्लेयरवाइंट बनना है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए। सो नाउ आई थिंक तुम लोग सो गए जाग रहे, मुझे नहीं पता, मुझे लगता तो है जाग रहे होंगे। अगर सो भी गए उठ जाओ, डाउट्स पूछ लो, उसके बाद वी विल आई विल गिव यू 1 or 2 टिप्स विद विका व्हाट यू कैन डू। लेकिन एक ही चीज बोलूंगी, इफ यू आर प्रिपेयर्ड टू कम एंड स्टे विथ मी, when I say with me at my home, AC and all is there because even I cannot stay without AC. But हाँ, गद्दे वद्दे होंगे, सब लोग अच्छे से मस्त आराम करो, फैमिली की तरह रात को गप्पे मार के अच्छे से सीखना चाहते हो तो फिर विका आप लोगों के लिए है, वरना वैसे भी हुडू में बताऊंगी क्या है। Any doubts on Vika, ask me. And those who have joined Vika, students who want to share your experience can also tell me. फिर मैं तुम लोगों को unmute करूंगी, and then you all can start telling your experiences also. एक मिनट, हाँ, first let me allow you all to unmute. हाँ जी, any doubts? First doubts? सब लोग जाग रहे हो ना, एटलीस्ट ऐसे कर दो जाग रहे हो तो। हाँ जाग रहे हो, ठीक है, कुछ लोग तो जाग रहे हैं, चलो। Any doubts anyone has? No doubts? पक्का? चलो, किसी को अपना फीडबैक देना है, उनके उनके लाइफ में क्या चेंज आया था विका के बाद, वो भी हाथ उठा लो। आई कैन नो बिकॉज देयर आर 2 screens हियर। नन मैम, ओके। आई कैन नॉट सी एनी, आई थिंक बोलो शिवा, शिवा यू कैन अनम्यूट। आई विल रुक जाओ श्रुति, पहले शिवा को खत्म करने दो, बोलो शिवा। Ma'am, the feedback is after 1.5 year के बाद. Initially, I have lot of doubts कि ये क्या होता है, 2 दिन का क्लास है, मैम सिखाते. I mean, that lot of doubts a normal engineering person has. But later on, started learning each and everything. When you give assignment, मैं तो वीक का सीखा हूँ. Why should I learn some other modality? Why should I combine? ये assignments क्यों है? रोया भी हूँ और चिल्लाया भी हूँ, बहुत सारे ये भी किया हूँ. But once I started learning each and everything, ma'am, right from herbs, right from modalities, what they have done, it gives me immense knowledge to understand. Okay, religion and coven, ये बहुत सारे important matter होता है. And not only that, ma'am, right now I'm handling. I'm doing workshops. Whenever my students ask questions, I'm able to explain like how we are doing. So that was one thing. Whenever somebody has an issue, the issue को logically and spiritually कैसे handle करना भी सीख लिया, and lot of confidence, like you said, with Vika, people have lot of confidence. Yes, that will be there, ma'am. Even one of my student is joined in this Zoom meeting also, Nagajyoti Jairam. So there's a Okay. lot of people have doubts, but they want to join, ma'am. So that is my entire journey. It's a wonderful journey, ma'am. I want to talk Ups and about downs are Shiva there, yeah. here. He was the first student, male student. I had agreed क्योंकि मैं इतनी जल्दी male members को अपने कवन में नहीं लेके आती हूँ. He was the first male guy I had taken in कवन. ये जब आया था ना,
मेरे पास, इसके लाइफ में पता नहीं कितनी चीजों का झमेला था, एक पूरे झमेले के साथ ही आया था मेरे पास। और बहुत सारी गालियां मेरे से खा चुका है, बहुत सारी डांट मुझसे खा चुका है। मैंने इसको ना, कभी कभी मैंने इसको, इसके मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं किए होंगे। ये बस में आया था, ही टुक 2-3 buses and he came because he didn't even want to spend on the flight, क्योंकि इसको सारा पैसा, एंड द डे ही रीच्ड चेन्नई, इसके पास बाकी थोड़ा फीस का भी पैसा नहीं था। एंड ही वाज स्कैर्ड कि मैं इतने बसेस में आया हूँ, आके बैठ गया। मैंने इसको बोला कि तुम नीचे बैठ जाओ, सो गया। और इसका फुल पूरा कैसे रेडी हुआ, कैसे इसने पूरा अपना जर्नी खत्म किया, वापस गया। मेरे से बहुत बार डांट खाई लेवल 2 में, मैंने इसको एक बार रिजेक्ट भी कर देते, मैं लेवल 2 नहीं सिखाऊंगी, भाग जाओ। आई स्टिल रिमेम्बर आई हैड टोल्ड हिम, मैंने इसको इतना, मैं इसको डांटती थी, फिर मैं सोचती थी बेचारे को डांटा, बट देन आई सेड नहीं, यू आर अ हाई प्रीस्टेस, यू हैव टू मेक हिम टू डू दैट जर्नी, यू कैन नॉट पुट बी बिहाइंड हिम लाइक अच्छा ठीक है बच्चा, चलो मैं हूं, नहीं, उसको खुद सीखना। एंड आज जिस तरह से वो बच्चों को सिखाता है वो एक अलग है, और आज जिस तरह से वो कॉन्फिडेंटली एक एक चीज करता है, मुझे खुद लगता है हाँ। एंड द फर्स्ट मेल विकन इन माई बैच वॉज हिम। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब ये नीचे आया, इमीडिएटली मुरली जी ने मुझे पूछा, देयर इज अ बॉय कम फॉर विका। आई सेड हाँ, देयर इज अ बॉय कम फॉर विका। But he said, you never select boys. I said, मुझे पता नहीं मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया। इसने सिर्फ मुझे अपनी अपनी लाइफ के 2 लाइनर बताए थे, जहां पर मुझे पता था अगर मैं इसको नहीं लूंगी, इसकी लाइफ में पता नहीं उसके बाद ये रहेगा भी नहीं रहेगा, बट मैं चाहती हूँ ये आए। एंड आज ये पूरे, इसने सारे अपने प्रॉब्लम्स 1.5 साल में खत्म भी किए हैं, और लाइफ में आगे बढ़ता गया है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। टुडे ही मस्ट बी वंडरिंग कि शायद मैम ने कुछ पिया विया होगा, मैम मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा बोल रही है। बट बिकॉज आई नो नो मैं मैम। कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, I scold my bachas because I think even Shruti is there in the batch who will be talking next. Shruti को भी मैंने बहुत डांटा है, but I scold them because I am a mother, but I am a guru. And if you're paying so much and coming to me, I want you to earn every single money out of what you've, learned from me, and you become so powerful that people say, अरे ये पिंकी पंजाबी के बच्चे वैसा नहीं। मैं सबको बोलूं, तुम्हें पता है वो जो शिवा सिखाता है पुणे में विका, वो मेरा स्टूडेंट है, मुझे वैसा चाहिए। जो श्रुति शाह गुजरात में हाई प्रीस्टेस बनी है, वो मेरी स्टूडेंट है, वैसा आना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैं कि तुम लोग मेरे नाम से जानो, मैं तुम लोगों के नाम से जानी जाऊं। दैट इज व्हाट आई एम व्हेन इट कम्स टू इन विका, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सेड, when I see Gerald Garner, I feel हाँ, मेरे जाने के बाद I have a bunch who says कि मैं इनका प्रोडक्ट हूँ, या तो इनके लीनियज में हूँ, और मैंने इनका नाम रोशन किया है। बट रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड बट इवन देन तेरा विका लेवल 2 भी जब तू असाइनमेंट्स खत्म करेगा तभी सिलेक्ट होगा, वरना नहीं सिलेक्ट होगा, याद रखना। यस मैम, आई विल डू। चलो, गॉड ब्लेस यू। बोलो श्रुति। ए श्रुति, अच्छा अच्छा बोलना। अनम्यूट अनम्यूट श्रुति। 1 minute लक्षिता, लेट श्रुति फिनिश। अनम्यूट करना पड़ता है। मैम, हम्म। सबसे पहले तो आपका इतना धन्यवाद मेरी लाइफ में आने के लिए, कि आपको नहीं पता है कि आपकी डांट से जो मैं सुधरती हूँ मेरे स्पिरिचुअल लेवल पे, मैं रियली बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं जैसे आपसे हर एक क्लास किया, विका किया, हुडू किया, आपने जो जो भी चीज मुझे 3 बार बोली है, उसके मायने मुझे आज समझ में आते हैं। जैसे पहले असाइनमेंट जो था, वो पहला असाइनमेंट जो मैंने मिस कर दिया, माँ, मुझे आज समझ में आता है कि वो मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। और आपके मिलने के बाद, और ये जो टेक्निक सीखते हैं या जो भी सीखते हैं आपके पास से, उससे बहुत चेंज होता है लाइफ में। और मैं कैसे माँ टूटी फूटी आपके पास आई थी, आज पता है शेरनी जैसे हो गई हूँ। हाँ, और आज तो ये तो शेर नहीं है, तो मुझे भी कच्चा चबा जाए आज। नहीं नहीं माँ, कतई नहीं, कोई जन्म में भी मैं आपके तुलना नहीं कर नहीं सकती, नहीं, आई लेकिन नॉट। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझसे भी और पावरफुल बनो, क्योंकि नहीं। तभी मैं आई विल फील प्राउड। अगर तुम मेरे अंडर ही लाइफ लॉन्ग रहेगी, फायदा नहीं। तभी तो मैंने तुम्हें भी इतनी बार। एंड एक चीज मैं श्रुति के बारे में बोलना चाहती हूँ, एक ऐसा स्टेज मैंने इसको बोला था, मैं तुझे कोई भी कोर्स में ऐड नहीं करूंगी। ये पता है क्या करती थी? पैसा डाल देती थी, क्योंकि इसको पता है मैं इसको मना नहीं कर, क्योंकि एज ए मदर आई कैन नॉट स्टॉप एनीवन कि मत करो। हर एक कोर्स मेरा एक कोर्स का आएगा और इसका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। मैं बोलती थी, मैंने तुझे बोला था ना कि मैं तुझे ऐड नहीं करूंगी। नहीं, कर दो ना माँ, प्लीज आप कर दो ना, फिर इसको ऐड करूंगी। उसमें भी मुझे 1000 डाउट पूछ के मुझे बहुत तंग करती है। कभी कभी इसको बोलती इतना तंग मत कर तू मुझे। तो मैं तो उसको नॉनसेंस बच्चा बुलाती हूँ। माय होल बैच, शी इज ओनली वन हूम आई कॉल नॉनसेंस बच्चा। सबके सामने बुलाती हूँ, अकेले भी आई बुलाती लव यू माँ। हूँ। आई लव यू टू। इसको माँ नॉनसेंस लेकिन बच्चा बुलाती हूँ, बट
हर जर्नी हैज आल्सो बीन देयर। जब मेरे पास आई थी ना, इसके लाइफ में ये भी नहीं पता था कि कल क्या होगा और कैसे होगा। बहुत बैठ सही के नीचे रोती थी अकेले अकेले। मैं सही इसको में। देखती थी ऊपर से कि ये रो रही है। मैंने इसको पहले 2-3 दिन तो रोने दिया कि तू रो, अपना पूरा निकाल, जो भी कचरा है अंदर से निकालो। सही कभी कभी इसने सोचा भी होगा, बुलाती भी नहीं है ऊपर, सबको बुला के कुछ ना कुछ एडवाइस दे रही है, सिर्फ मुझे अकेले रखा है। फिर 4th डे आई टोल्ड हर, कम अप नाउ यू टॉक, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। फिर उसको मैंने डांटा, मैंने इसको समझाया कि यू हैव टू बी इन दिस वे, यू हैव टू डू दिस वे। उसके बाद शेरनी की तरह ठीक होके सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करके बाहर निकली। सो जी दैट हाँ। मींस आई एम प्राउड ऑफ हर। लेकिन तंग अभी भी मुझे करती है, टू बी मैं वेरी। तो वो जब तक आप ऐसे बोलोगे ना ये धरती पर हूँ तब तो आपकी स्टूडेंट रहूंगी एकलव्य की तरह। आप जो भी करो, मारो डांटो निकाल दो, फिर भी आपकी गली के बाहर खड़ी रहूंगी मैं। वो तो पता है। चलो, गॉड ब्लेस यू। बोलो लक्षिता। Hi, Mom. हेलो। I just I just wanted to share with everybody this thing. वो मैम से मॉम का रिश्ता जो बना है, दैट इज अल्टीमेट। मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मुझे विका ने क्या दिया है, और स्पेशली आपने क्या दिया है। यू हैव मेड मी सच अ पावरफुल गर्ल कि नाउ आई टेक माय क्लाइंट्स। आई यूज्ड टू टेक क्लाइंट्स एंड आई यूज्ड टू नेवर टेक मनी फ्रॉम देम। आपको अच्छे से पता है, लेकिन आपने मुझे इतना अच्छे से सिखाया एवरीथिंग। मैं इतना कुछ लर्न करके आई। 3 दिन के लिए आई थी, मैं 10 दिन रह के गई। रह गई। मैं प्राउडली सबको बोलती हूँ कि वाओ, मतलब बीइंग अ डायबिटिक, बीइंग अ प्रेशर पर्सन, क्या क्या प्रॉब्लम्स में मैं आपके पास आई, बट इट वाज सो ऑसम। मतलब छोटी से छोटी चीज अगर आप मुझे डांट भी देंगे तो भी मुझे पूछेंगे बुरा लगा। मैं बोलती थी नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड इतना अच्छा कनेक्शन है ना मैम, अभी मुझे आपको मैम कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो टेलीपैथी चलती है कि आपको पता लग जाता है और आप मैसेज करते हैं क्या हुआ, सब ठीक है। लाइक आई डोंट हैव टू, पता नहीं, वो बोलते हैं ना, मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि आई एम नॉट बॉर्न फ्रॉम यू, फ्रॉम योर वूंड, बट यू हैव वेलकम मी इन योर हार्ट। दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ। All are my unborn children only, not from the womb, but yes, spiritually I am only the mother. Lakshita का पता है, even in Lakshita's case, she applied, उसने 2 बार अप्लाई किया था और मेरे पास इसका फॉर्म ही नहीं आया था। फॉर सम रीजन अदर नहीं आया था, तो इसने एक कैंडल क्लास ज्वाइन किया मेरे पास। और इसने कैंडल क्लास चल रहा था, तो इसने मुझे सिर्फ यही चीज एक बोली कि जिस दिन आप मुझे विकास सिखाओगी उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैंने अपनी शादी को होल्ड में रखा है 1.5 साल तक, और मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी क्यों होल्ड में रखी? देन शी टोल्ड मी, मैंने 2 बार अप्लाई किया, यू नेवर सेलेक्ट मी। ऐसे तेरा एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आया मेरे पास बेटा, आता तभी तो आई विल नो व्हाट इट इज, हाउ इट इज। तो ठीक है, टीम ने कुछ गड़बड़ की और इसका नहीं आया। फिर मैं इसको बोला, अगर तुझे विका करना है तो पहले तुझे शादी करनी आपने मेरी शादी पड़ेगी। कराई हाँ, है। इसको मुहूर्त सब मैंने निकाल के दिया, तू शादी करेगी और अब तेरे पति तुझे छोड़ने के लिए आएंगे एयरपोर्ट तक। एंड दैट इज हाउ शी गॉट मैरिड एंड देन ओनली शी केम, बिकॉज इसने मेरे लिए, विका के लिए, इसने मतलब कि मैं इसकी गुरु बनूं, उसने अपनी शादी 2 साल तक रोक के रखी थी। एंड हाउ शी ट्रांसफॉर्म, जब यहाँ आई थी इसने बोला पता नहीं मैं हुडू करूंगी नहीं करूंगी, एक और भी क्लास था मैं करूंगी नहीं, मैं पता नहीं, लेकिन मैं विका के लिए आ रही हूँ। विका हुआ, विका के बाद मैं हुडू भी करके ही जाती हूँ। ठीक है, कर ले। उसके बाद थर्ड एक कोर्स है, मैं वो भी करके ही जाती हूँ ना, एक ही बार आई हूँ तो सब खत्म करके ही जाती हूँ। मैं ठीक है करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। 10 दिन मेरे साथ रह के, हाँ बस मैं, उसने मुझे प्रॉमिस किया था मेरे लिए मटन बनाएगी, वो नहीं बनाया। नेक्स्ट टाइम अभी मैं आऊंगी। अब नेक्स्ट क्लास कब है? मैं आ रही हूँ, मैं ऐसे ही आ रही हूँ आपके पास रहने के लिए। आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो ये वापस गई, फिर भी मुझे लगा कि ये कैसे करेगी क्या करेगी। देन शी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग, शी स्टार्टेड गिविंग रिजल्ट्स टू क्लाइंट्स, एंड देन शी स्टार्टेड अर्निंग। बिकॉज मेरे लिए क्या होता है, लेवल 1 ठीक है, पति का पैसा ले लो या तो माँ बाप से पैसा ले लो या तो कर्जा ले, लेकिन जब तुम लोग लेवल 2 करोगे खुद के कमाई से ही आओगे। किसी का पैसा नहीं चलता है लेवल 2 में, खुद कमाओगे। जो जो मुझसे सीखे, तभी मैं लोगों को कभी कभी बोलती हूँ कि हुडू भी सीख लो, क्योंकि हुडू में क्या होता है, कमाई हो जाती है कि चलो पैसा निकालना शुरू करो। विका में क्या होता है, 3 साल रुकना पड़ता है ना, क्योंकि मैं तो बहुत टॉर्चर करती हूँ। तुम लोग ऐसे ही मुंडी हिला रहे हो सब लोग, जैसे मैं टॉर्चर करती हूँ, नॉनसेंस। नहीं नहीं, सब लोग बट ऐसे ऐसे सर हिला रहे हो, कौन सा मैं नहीं टॉर्चर मैम, करती हूँ तुम लोगों को? सो बिल्कुल दैट इज टॉर्चर लाइक, करते। विका का 3 साल का जर्नी होता है जहां पर यू एक्सप्लोर, लेकिन हुडू का वो जर्नी होता है जहां पर यू गेट इमीडिएट चेंजेस। तभी बोलती हूँ कि हुडू भी सीख लो, ताकि लेवल 2 का पैसा तो बने तुम सबको। चलो, गॉड ब्लेस यू लक्षिता। अभी आंचल, थैंक यू मैम। बोलो आंचल, अनम्यूट। गुड इवनिंग माँ।
गुड इवनिंग। लक्षिता से मैं एग्री करूंगी, जो मैम से माँ का सफर बहुत ही सही था। एज वेल आपको भी पता है मैं कैसी थी, चिकन लिटिल जैसे बोले वैसे। मेरे लिए तो ट्रैवल करना भी इट वाज सच अ बिग थिंग। अब तो बिंदास आ जाती हूँ टिकट निकालने की देर होती है बस। एज वेल वहां रह के है ना, यू डोंट फील लाइक कि कहीं और कहीं आप किसी और के पास हो। इट्स लाइक अ होमली एनवायरनमेंट। जो चाहो करो, जैसे चाहो करो, कोई रोक टोक नहीं होती। एंड अबाउट ऑल दैट, मैं जो पावरफुल बनी हूँ, यू ऑल नो दैट। और मेरा जो सफर है उसमें आपका जो बड़ा हाथ है, इट्स मेरा कुछ नहीं है। I was just a guidance for you all. yes, हाँ, इसका था। but ये yes, जब आई थी, मैं सिर्फ अपने पति के लिए करूं बस है, मैं सिर्फ अपने बच्चों के। और आज मैडम हीलर बनती, सबके सबके रिचुअल्स लेती है और मुझे लिस्ट भेजती है, yes, मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे आप ये चीजें भेज दो, मेरा ये रिचुअल है करके। yes, yes. I have been a lot more powerful what I was earlier. Be into emotional terms, be into mental taking things how it should be. Yeah, even working wise also. काफी प्रैक्टिकल भी बन गई हूँ। वो जो पहले इमोशनल फूल होते थे ना अब नहीं रहे। इसको मैं अपने कवन की मदर तेरेसा बुलाती हूँ, अन्नपूर्णी। मदर तेरेसा की अन्नपूर्णी देवी। yes, इस बार भी जो लोग विका के लिए आ रहे हैं, इस अन्नपूर्णी से मिलोगे। ये तुम सबका खाने का ध्यान रखने के लिए, सिर्फ तुम लोगों के खाने का ध्यान रखने के लिए बोल के आ रही है मेरे पास। लेकिन मैं इसको बोला है कि आ जाओ, देखो, क्योंकि इसने लेवल 2 खत्म किया है, इसके लेवल 3 के जर्नी के लिए वो भी यूजफुल होगा। तो जो लोग इस बार हो मार्च में, इस अन्नपूर्णी से मिलोगे तुम सब लोग। थैंक यू इतनी पदवी देने के लिए यू आपसे। डिजर्व इट, बिकॉज जिस तरह से यू केम, जब तुम मेरे पास आई थी, मुझे आज भी याद है। ये एक एक चीज लेने के लिए भी सोचती थी कि मैंने इसको बोला ले ले, क्यों नहीं ले रही है, तो बोलती थी नहीं माँ अभी ना थोड़ा कम है, मैं बाद में लूंगी। नहीं, तू लेके जा, अपने आप पैसा तू भेजेगी। और 10 दिन क्या, 1 हफ्ते के अंदर भेज दी। कैसे किया माँ, आ गया, क्लाइंट बन गए, मैंने कर ली। मुझे आज भी Yes, याद है that जब was the magic. Yes. वेरी वेरी फ्रेजाइल, वेरी सॉफ्ट। एक कोई किसी को कुछ डांट देगा तो फिर शायद डर के रोने लगेगी, लाइक दैट। और आज पता नहीं, सबको डांटती नहीं है, बट हाँ, शेरनी की तरह है। जैसे श्रुति ने बोला ना, मैं Yes. शेरनी बन गई, ये भी शेरनी बन गई है। हाँ, श्रुति जी के सामने नहीं है। हाँ, श्रुति की बराबरी कोई नहीं भाई, मैं भी नहीं। चलो, थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू। चानम बोलो। ए चानम, अच्छा अच्छा बोलना। गुड इवनिंग गुरुवार। गुड इवनिंग। क्यों हंस रही है बेटा? आपको पता है अभी हंस रही हूँ, लेकिन जब विका करने आई थी, कैसे आई थी मैं आपके पास, है ना। तो इट हैज बीन अ मैजिकल जर्नी। बहुत सारी चीजें सीखी वहाँ। अभी जो बिल्कुल मेरे पहले वो काम नहीं अच्छे से होते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपनी जर्नी भी, स्पिरिचुअल जर्नी भी, आपको पता है कितना चेंजेस आया है, क्या हुआ है। रो रो के क्लासेस की थी। एक दिन पहले तक आपको बोली थी कि नहीं आना है करके, बट इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। मुझे थोड़ा टाइम लगे हैं। कम मैं दूसरों के साथ, मुझे दूसरे का जर्नी नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगे हैं, यू नो। लेकिन क्या कि मैंने डेडिकेटली सब कुछ करती गई, आपने जो जो सिखाया, जैसे सिखाया, एंड द चेंजेस स्टार्टेड कमिंग अपने। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मतलब टचवुड सब हो रहे हैं अब। मतलब विका इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। विका, हुडू, मतलब सब इतना पावरफुल मोडालिटी है। बहुत सारे चेंजेस लाए हैं लाइफ में। हर चीज का रिजल्ट आना शुरू हुआ है, अपने लिए, क्लाइंट्स के लिए, घर वालों के लिए। आजकल तो ये हमारे विका के हेकाटे को और एलेगो को जैसे झाड़ती है, मुझे डर लगता है कि उठ के सामने से इसको थप्पड़ ना मार दे वो लोग। भगवानों को ऐसे डांटती है, ऐसे डांट लगाती है। तुम लोग को पता नहीं, मैंने ये बोला है ना करने के लिए मेरा क्लाइंट का, तो फिर क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? अभी से अभी करो। और फिर वो बेचारे भगवान करते भी हैं इसके, बेचारे उनको तो मैं बेचारी बोलती, मैं तो बस इसको सिखाया और मैं बच गई। इसके भगवान वहां पर मर गए। बट हाँ, इसका जर्नी भी अच्छा था। When she came, even one day before she said, I'm not coming. There's a lot of commitment needed. फिर मैं कैसे करूंगी? I have to take care of this. फिर मैंने इसको एक ही चीज बोला, करना है करो, नहीं करना है मत करो। अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो तुम करोगी। तो इसको लगा कि मुझे गुस्सा आ गया और ये भाग के चली आई फिर कि नहीं मैं आ रही हूँ। मुझे गुस्सा नहीं आया, बिकॉज हर एक का अपना कर्मा होता है। वी कैन नॉट चेंज समवन्स डेस्टिनेशन और कॉल समवन बाय फोर्स। लेकिन उसके बाद अभी मैडम अपने आप को वीकेंड टैरो बुलाती कि मैं वीकेंड टैरो हूँ।
मैं वीकेंड हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, एंड करती भी है बेचारी, दैट वे शी इज वेरी गुड एट इट, बट हाँ अपने आप को वीकेंड टारो बुलाती है। गॉड ब्लेस यू थैंक यू गोकुल। थैंक यू। बोलो गोकुल। हेलो मैम। तो मेरी जर्नी तो मतलब मोस्ट अमेजिंग रहा है, क्योंकि जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि विका में आऊंगा या हुडू में आऊंगा या आपके साथ कैसे। परफेक्ट बात बोल रहा है कि एक्चुअली मैं एक गुरु के लिए एक गुरु को सर्च करके जा रहा था, और कहीं ना कहीं आप मेरे सामने हैं, और आपने जो जो बात बोली एग्जैक्टली मैंने वैसे किया, अच्छे बच्चे बनकर। और आपने वो मुझे एग्जैक्ट बोलना चाहिए वेदर यूर अच्छा बच्चा और नॉट, तुम सिर्फ अपनी स्टोरी बताओ। बट आपने जो जो बोला एग्जैक्टली वैसा किया, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैड दैट फेथ कि मैं करूंगा और वो होगा, और वो चीज हुआ। तो दैट्स द बिगेस्ट चेंज वो मेरे लाइफ में आया। तो 7 डेज जो मैं वहां जो स्पेंड किया, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग, बिकॉज प्यार क्या होता है एक्चुअली मैंने वहां जाके देखा। इट बी इट इज मदर लव, और इट इज हस्बैंड वाइफ, और इट इज एनीथिंग, और ऑन टॉप में लाइक जो होमली फूड, आई मीन लाइक इट हैड द बेस्ट थिंग आई मतलब वो हैड। खाना खाने के लिए आया, क्लास सीखने के लिए नहीं आया। बेशरम। नॉनसेंस। मस्त मस्त यमाया सब करता है, फिर किसने सिखाया तुमको वो सब? क्लास तो नो डाउट, उसमें कोई हम डाउट ही नहीं करता। आप हमेशा जो सिखाते हो वो ऑन टॉप ऑफ इट हो, तो वो बीएड आपका बुक हो, मतलब मैं अभी भी आपको यही बोलता हूँ, आपने जो बुक लॉन्च किया था उसमें वो तो ओवर इंफॉर्मेटिव है वो। तो हर आपने कोई भी कोर्स करवाया हो वो हमेशा उस टू द कंटेंट नहीं है, इसलिए आपने हमेशा ओवर ही सिखाया। तो अभी अगर मैं कुछ जानता भी हूँ कि यार ये कौन है क्या है, हमारे उड़ीसा को लेकर हो या हमने विका में जो सीखा है, वो आपने बी ए टूल्स ऑल्सो, टूल्स का क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे यूज करना है, वो आपने इतना डिटेल में कि उसमें मैं कभी डाउट नहीं करता। अभी मैं तक मैं कहता हूँ कि हाँ। एंड वो 7 डेज जो मैं वहां आके जो मैं बहुत खूबसूरत लोगों से मिला हूँ, इट इज लाइक इट्स फॉर एवर। एंड यस। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे को उस जर्नी में, एंड आई एम हैप्पी दे ऑल आर हियर, एंड वी आर हाँ, ऑल बिकॉज आई टुगेदर। स्टिल रिमेम्बर इनके बैच में इनके इनिशिएशन करते मैंने पहले एक 3 लोगों को अलग स्तर से बिठाया था हुडू के टाइम। मुझे याद है मैंने 3 को अलग से बिठाया था और मैंने बाकियों को, और ये तीनों बहुत डर गए कि हमें सिर्फ अलग क्यों बिठा। तो मैंने बोला तुम तीनों ना एक बर्थ में साथ में थे, एंड इनको भी वही विजन दिखा था, लेकिन ये डर गए कि शायद हमें आज ये यहाँ से गला पकड़ के बाहर निकाल के फेंक देगी कि तुम तीनों नहीं हो, चलो अभी निकलो यहाँ से। लेकिन इन तीनों को भी वही आया इनिशिएशन में, ये तीनों भी मेरे साथ थे उस टाइम पे, और ये तीनों बहुत पहले से ही, इनफैक्ट 2-3 बर्थ से ये तीनों भाई बहन की तरह इस जर्नी को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और शायद इस बार इनका जर्नी यहाँ पर अच्छे से फुलफिल होगा। दैट इज ऑल आई कैन प्रे एंड होप फॉर। तो आई स्टिल रिमेम्बर ये कैसे तीन, और इसके बाद ये तीनों अलग ही हो गए। जैसे एक जब देखो अलग बैठ के गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, फिर मैं बुलाऊंगी आ जाओ क्लास है, सब भाई बहन होते। तुम तीनों एक जन्म में साथ थे, लेकिन अभी साथ नहीं हो। अभी अभी काम करो, अभी पढ़ाई करो। But that was in your batch only that happened, no, Gokul? Three यस of मैम। you I had kept. आंचल, लक्षिता। हाँ आंचल लक्षिता इन यू, बराबर। चलो गॉड ब्लेस यू। लेकिन खाना खाने के लिए आज तेरे को अगली बार नहीं बोला, लेवल 2 तेरे को नहीं करवाऊंगी, याद रखना। ऐसे बोलो नहीं होगा, सलोनी। आऊंगा मैं। आऊंगा मैं। यस सलोनी। Ma'am, I wanted to ask if the Voodoo class is online also. Yes, I will, when I next I'll be explaining about Hoodoo. I will tell you all the difference of the online and in person का initiation. But Hoodoo can be done online. Hoodoo के लिए आना है करके जरूरी नहीं है, and why Hoodoo also I will explain. ठीक है, पहले मैं विका में आप सबको आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। मैं आपको विका में एक छोटा सा, या तो पहले मैं हुडू समझा देती हूँ, देन मे बी विका एंड हुडू का कंबाइन करके आई विल गिव यू ऑल द टिप्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू हुडू। देखो विका रिलीजन होता है, हुडू इज नॉट रिलीजन, हुडू इज मैजिक। हुडू में हम लोग ओरिशास को फॉलो करते हैं। इनिशिएशन इज इट नीडेड, जैसे सलोनी ने पूछा डू वी हैव टू कम इन पर्सन। जब आप इन पर्सन आते हो तो थोड़े ऑफरिंग्स मैं बोलती हूँ लेके आने के लिए, और जब आप ऑनलाइन करते हो मैं एक क्वेश्चनर भेजती हूँ कि आप इस पूरे क्वेश्चंस का जवाब दो। क्योंकि दोनों में क्या होता है, मैं 10 दिन पहले से आपके एनर्जीज पे काम करने लगती हूँ, ताकि मुझे ये समझ में आए आप लोगों के ओरिशास क्या होते हैं, आप लोग किसके साथ कनेक्ट करते हो। क्योंकि हुडू को हम लोग, हुडू में क्या होता है,
हुडू कैसे शुरू हुआ था? बहुत सारे लोग स्लेवरी में थे उस टाइम पे, एंड उनको इस स्लेवरी से कैसे निकलना है, दैट दे नेवर अंडरस्टूड. दे वर ऑल स्लेव्स, दे वांटेड टू बिकम फ्री, दे वांटेड टू कम आउट ऑफ दिस. उस टाइम पे सर्टेन पीपल कनेक्टेड विद सर्टेन ये with certain deities, मतलब spirit gods, and then the Hoodoo religion became famous. Hoodoo पहले पहले वेस्ट अफ्रीका में शुरू किया गया था. Many people ask me, you are not black, so how can you do voodoo? Hoodoo. You don't have to be a black to do hoodoo. You need to have the right ओरियाते या तो the right बाबालुआ. बाबालुआ उनको बोलते हैं जो मेल गुरु होते हैं हुडू में, ओरियाते उनको बोलते हैं जो फीमेल गुरु होती हैं. बहुत सारे लोग हुडू सिखाते हैं, लेकिन अगर आपको आपके ओडिशा जैसे हमारे ओके ना ओडिशा का अगर हम लोग बोलते हैं गार्डियन एंजल्स होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ में हमेशा एक गार्डियन एंजल हमारे साथ ही रहता है, हु हेल्प्स अस, who takes care of us and who makes all our things to happen. बराबर we talk about guardian angels, we all know हमारे ancestors में भी कोई एक ऐसा होता है जो हम जिसका जो हमसे बहुत प्यार करता हो, and he is also there with us as a guardian angel. Now the orishas are like that. They are your spirit gods who will always be with you. तो इनिशिएशन क्यों होता है? जब यहाँ पर आते हो क्या होता है? सिंपल लॉजिक है, मैं तुम लोगों को बोलती हूँ कि सामान यहाँ रख के इनिशिएशन ले लो, क्योंकि हर बार जब तुम लोग ऑफरिंग्स करोगे या हम लोग एक एनर्जी वर्क जब करते हैं उसमें आपके ऑफरिंग्स आपके नाम से मैं भी ऑफरिंग्स देती हूँ. एलेगुआ को चाहे हो गया या माया को हो गया, उस तरह से मैं देती हूँ. लेकिन जो ऑनलाइन करते हैं उनको मैं अलग से बोल देती हूँ उनको क्या क्या ऑफरिंग्स जाके डाल के आनी चाहिए, तो फिर वो लोग जाके डाल के आते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. इनिशिएशन वाइज इट कैन बी डन इवन ऑनलाइन. ओरिशाज आपको आपके ऑनलाइन भी मिल जाते हैं. हम लोग 3 लेवल होते हैं हुडू में. बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि हुडू के 3 लेवल्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू पीपल 10 स्पेल्स सीख लिए, 10 क्या बोलते हैं 10 पाउडर सीख ले, 10 ऑयल सीख ले, हुडू इज डन. नहीं, हुडू वैसा नहीं होता है. लेकिन हुडू में इमीडिएटली आप जिस तरह से स्पिरिट जैसे एलेगुआ हो गए, एलेगुआ रोड ओपनर होते हैं, तो आपने इनिशिएशन ले लिया, आप एलेगुआ के साथ इमीडिएटली वापस जाके आप अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो. तो एलेगुआ का क्या क्या ऑफरिंग होता है, कैसे काम करते हैं, वैसा होता है कि स्पिरिट गॉड्स ये भगवान ही होते हैं, ये हमें हार्म नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर मोर. स्पिरिट गॉड्स का क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी एक बर्थ में दे हैव कम डाउन एज ह्यूमंस एंड देन दे हैव पास्ड आउट. जैसे हम लोग साईं बाबा से नहीं डरते हैं, बराबर, और हम लोग गुरु नानक से नहीं डरते हैं, वी डोंट. सो सेम वे दे आर स्पिरिट गॉड्स. लेकिन ये इनका थोड़ा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड द बैकग्राउंड इज लिटिल डिफरेंट. लेकिन ये लोग धरती पे रहते थे और कहा जाता है जैसे आदाम एवाल को भगवान लेके आए थे और भगवान ने धरती बनाई थी, वैसे ही कहा जाता है कि ओल्दुमारे होते हैं भगवान ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, भगवान ऑफ द नाइजीरियन पीपल. उन्होंने ये पूरा क्रिएशन बनाया था. उन्होंने ओबाताला को नीचे भेजा था. ओबाताला ने ये पूरा मतलब जो भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, हमारे जो भी रिवर्स हैं, ओशंस हैं, वो उन्होंने बनाया था. नाउ हुडू, इज इट पावरफुल? 10,000% इट इज पावरफुल. हुडू में क्या होता है, मान के चलो आज आपने अपने क्लाइंट के लिए 3 बार या 10 बार रिचुअल्स करते हो, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. विका में आप पहले ज्वाइन करोगे, चीजें सीखोगे, अपने ऊपर प्रैक्टिस करोगे. विका में क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो यू कैन बिकम ब्लैक मैजिक रिमूविंग एक्सपर्ट्स. हुडू में क्या होता है, हर चीज में आप लोग अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो. जैसे यमाया हो गई, यमाया के साथ आप प्रे कर सकते हो कि यमाया आपके क्लाइंट के लिए अगर बच्चा नहीं हो रहा हो तो बच्चा उनको फर्टिलिटी हो जाए. अगर मान के चलो कि एलेगुआ से आपको नौकरी मिलना चाहिए, आप चाहते हो कि आपको नौकरी मिल जाए, तो यू कंबाइन एलेगुआ विद ओगुन और यू डू अ रोड ओपनर रिचुअल. हुडू में क्या होता है ना, हुडू बहुत सारे लोग सिर्फ स्पेल्स सिखाते हैं और ऑयल्स और पाउडर सिखाते हैं. मतलब जैसे मान के चलो मैं भी, हमारे हुडू में भी ऑयल स्पेल्स सब होगा. जैसे लेवल 1 का जो होता है वो अलग एक सेट ऑफ 20-25 स्पेल्स होता है, जिनके वीडियोस में जो लोग एडवांस के लेते हैं उनको मैं दे देती हूँ, जिसमें यू हैव 10 ऑयल्स, 10 स्पेल्स, 10 टाइप्स ऑफ पाउडर्स. तो ये जो मास्टर लेवल हुडू है वो क्या होता है, आपको आपके ओरिशास क्यों जानने हैं, ताकि लाइफ में जब भी आप उनको बुलाओ आपका काम आसानी से हो जाए और आपका काम जरूर हो. जैसे मैंने बीच में यूट्यूब में कि इंस्टा में पता नहीं एक ओबाताला का सिंपल रिचुअल डाला था जो हर कोई कर सके, चाहे वो
इनिशिएट्स हो चाहे वो नॉन इनिशिएट्स हो, हेल्थ इश्यू पे कर सके। जिसने भी वो रिचुअल किया है उनके क्लाइंट्स के लिए और खुद के लिए हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार आया है। लॉट ऑफ ब्यूटिफुल चेंजेस इन हेल्थ दे हैव सीन। तो ये जो गॉड्स गॉडेसेस होते हैं, मतलब ये जो स्पिरिट गॉड्स होते हैं हमारे ओडिशाज में, ये हमारे लिए बहुत इमीडिएटली काम आते हैं। लेकिन इनिशिएशन क्यों चाहिए, वो तो हम लोग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। देखो ऑनलाइन सब कोई सीख सकता है, लेकिन व्हाट इज द रीजन व्हेन यू वांट टू लर्न अंडर अ गुरु? गुरु के साथ जब आप सीखोगे यू विल अंडरस्टैंड द राइट मेथड, कि कौन सा राइट मेथड होता है, किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और यहाँ पर भी आप अपने ओरियाते, क्योंकि जैसे विका में मैं हाई प्रीस्टेस बनती हूँ, हुडू में मैं बन जाती हूँ ओरियाते, विच इज योर गॉड मदर। ओके, नाउ द गॉड मदर विल बी विद यू व्हेन यू आर कॉलिंग ऑन द स्पिरिट गॉड्स। कुछ लोगों को एलेकेस दिए जाते हैं, बहुत लकी लोगों को एलेकेस मिलते हैं। एलेकेस मालाएं होती हैं हमारे स्पिरिट गॉड्स की, जो मैं बैठ के एनर्जाइज करके उनको फीडिंग करके सब करके मैं देती हूँ। अगेन बहुत लोग पूछते हैं लेकिन हुडू में तो एनिमल सैक्रिफाइस होता है। जी नहीं, ये सब जो दिखाते हैं यूट्यूब में या तो ऑनलाइन में होता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं होता है। सिंपल एक लॉजिक बताती हूँ। यमाया को अगर जिसका बच्चा नहीं हो रहा, या तो यमाया किस लिए आती है, क्योंकि आई थिंक वी विल स्टार्ट विद यमाया। यमाया इज द गॉडेस ऑफ द सी, ठीक है। तो ये जो गॉडेस ऑफ द सी है, लाइफ में उसने बहुत सारे दुख देखे। वो तो भगवान है, लेकिन इंसान होके तो जैसे इंसान पैदा होता है उसको तो दुख देखने पड़ते हैं। उनको रेप किया गया था, उनके बच्चे नहीं हुए थे, स्टार्टिंग में बहुत सारे दुख देखे। फिर उसने बोला कि मुझे दुनिया ही नहीं चाहिए, एंड शी बिकेम द गॉडेस ऑफ द सी, ठीक है। जो वुमेन बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, वो लोग यमाया से कनेक्ट करती हैं कि हमें बच्चा चाहिए। लेकिन यमाया आपको सिर्फ बच्चा नहीं देती, क्योंकि यमाया क्या है, शी इज द गॉडेस ऑफ द सी। सी इज द मोस्ट रिचेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? क्योंकि आपको सी में कॉरल भी मिल जाएगा, आपको सी में पर्ल भी मिलता है, आपको सी में मछलियां भी मिलती हैं। सी में क्या कुछ नहीं होता है, सब होता है सी में। तो सी इज द मोस्ट अबंडेंट थिंग इन दिस होल वर्ल्ड। तो जब आप यमाया के साथ कनेक्ट करोगे, अगर बच्चा नहीं तो बच्चे के लिए कनेक्ट कर सकते हो, पैसे नहीं है पैसे के लिए कनेक्ट कर सकते हो, जो चीज नहीं है उसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे हम लोग 7 ओडिशा सीखेंगे, हर एक ओडिशा का अलग अलग महत्व होता है, उसके साथ जब हम सीखेंगे। पिछली बार सितंबर बैच में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो सिर्फ मेरे साथ विका में भी जुड़ी थी, हुडू में भी इसीलिए जुड़ी थी कि उसको बहुत दिनों से बच्चा नहीं होने हो रहा था, एंड उसका इश्यू वही था। तो यहाँ पर जब हमने यमाया का मेडिटेशन रिचुअल किया, उसको मैंने बोला, उसको हम लोगों ने यही समझा था कि तुम पेटिशन करो कि यमाया तुम्हें प्रेग्नेंट करे, and by God's grace another 2 or 3 months her baby will be, you know, here, and she will come to me, क्योंकि मैं उसकी god mother हूँ, and I will be holding the baby in my hands. So that is Yamaya. Understood? तो Yamaya is that. Yamaya, not only Yamaya, हुडू में वही होता है कि मुझे मैजिक चाहिए, क्योंकि आजकल ना इट्स बिकम अ 2 मिनट नूडल्स का जमाना हो गया, फास्ट फूड का जमाना हो गया। पहले वैसा नहीं था, पहले लोगों को नूडल्स बनाते थे, छतों में सुखाते थे। आज ऐसा नहीं होता है, पैकेट लो, गर्म पानी डालो, फटाफट खा के निकलो। किसके पास टाइम है? आज क्लास होके घर वाले खुद पूछते हैं क्या सीख के आई, अच्छा मेरा ये काम कर देना, थोड़ा मेरा वो प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा वो मेरा प्रोजेक्ट क्लियर करवा दो। और अगर नहीं क्लियर हुआ, क्या सीख के, पता नहीं, सिर्फ पैसा बर्बाद कर किया। दिस इज स्टैंडर्ड डायलॉग विच आई हैव हर्ड इन एवरी household or every person's life, ठीक है। तो हुडू will bring a change in that, क्योंकि हम लोग दुनिया को तो नहीं बैठ के समझा सकेंगे कि भाई रुक जा, विका 3 साल करूंगी और स्ट्रॉन्गर बनूंगी, और मेरे हुडू और विका को जब कंबाइन करूंगी तो ऐसे चुटकियों में मेरा काम होने लगेगा। लोगों को तो वो नहीं समझ में आता है। लोग क्या लगता है, जैसे पति हो गए, माँ बाप हो गए, जाके कुछ तो फायदा हो, कि पैसा बेकार पानी में बहा दिया। तो द हुडू वर्क्स इन दैट वे। आप इमीडिएटली रिचुअल्स ले सकोगे, क्लाइंट्स के लिए रिचुअल्स, खुद के लिए भी रिचुअल्स कर सकोगे। हुडू में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने क्लाइंट्स की स्टोरीज देखी, क्लाइंट्स ने स्टूडेंट्स, आई विल टेल स्टूडेंट्स बिकॉज़ दे आर माय स्टूडेंट्स, दे कम टू मी फॉर अ सर्टेन थिंग, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, जो प्रेग्नेंट वाज देयर, उनका प्रेगनेंसी क्लियर हो गया, एंड अनदर 2 months द बेबी इज गोइंग टू कम। देयर वाज वन मोर पर्सन हु हैड कम टू मी, मेरा आई थिंक दैट वाज माय 2016 17th batch, that was my I think 2017 batch में। she was a mother of 2 sons, और नहीं 2017 नहीं, आई थिंक कोविड 2019-20 में हुआ था, तो हाँ, तो 18 में आई थी मेरे पास, 18 में आई थी, एंड शी केम, शी लर्न
सब हुडू उडू सीख के, शी वाज फ्रॉम मथुरा, आके सब सीख के चली गए। और कोविड हुआ और उनके बेटे का शादी था, और 1 वीक बिफोर द शादी, नहीं 2 वीक्स बिफोर द शादी, द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड दैट नो वन कैन कम टू इंडिया, यू कैन नॉट गो फ्रॉम इंडिया। तो शी कॉल्ड मी, आई सेड कुछ नहीं, एलेगुआ को पकड़ो, एलेगुआ को बोलो फ्लाइट्स खोले, इमरजेंसी फ्लाइट से मेरा बच्चा आए। एंड शादी के ठीक 2 दिन पहले वो इंडिया पहुंचा, उसकी शादी भी हुई, उसके दूसरे लड़के के लिए एक लड़की भी पसंद आई उन लोगों को, और 6 महीने में दूसरे लड़के की भी शादी होके वापस वो लोग गए यूएस 1 साल के बाद। दैट इज एलेगुआ, यू नो ही डज मैजिक। एंड जब वो मेरे पास आती थी ना, क्लास में भी जब बैठती थी, जब देखो उसके मुंह में वो क्या बोलते हैं, शी यूज्ड टू टेल सम नेम, रजनीगंधा, रजनीगंधा उसको बहुत था खाने का शौक, जब देखो रजनीगंधा। मैं डांटती थी तो चोरी छुप के खाती थी, लेकिन रजनीगंधा उसके मुंह में था। तो वापस गई, शादी का टेंशन, अभी जब वापस गई उसके बाद बच्चों का ये कोविड हो गया, ये हो गया, तो टेंशन में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। फिर मैंने सब बच्चे बच्चे सब वापस गए, तो मैंने उसको पूछा अभी क्या करती है, तो शी सेज माँ आप डांटोगे ना मुझे अगर मैं बोलूंगी, ऐसे नहीं भी बोलोगी तो भी डांटूंगी, बोलो तो सही। नहीं अभी भी मैं खाती हूँ, और एक दिन में 3 डब्बे खाती हूँ। तो मेरा इतना गुस्सा चढ़ गया, मैंने उसको बोला कि तू आज के आज शैंगो से और ओया को बोलेगी कि तू अपना ये, मैंने उनको समझाया था कि कैसे एप्पल रख के पेटिशन करके रिचुअल करना है, एंड तू उसी दिन मुझसे वापस बात करेगी जब तू इससे पूरा बाहर निकली है, मैं तुझसे बात नहीं करूँ, एंड आई विल नॉट टॉक टू यू। एंड लिटरली फॉर 4 वीक्स शी विल मैसेज, शी विल कॉल, मैं उसका फोन नहीं उठाती, मैसेजेस के जवाब नहीं देती थी। 4 वीक्स के बाद मैं एक बार लाइव आई थी, मैं इंस्टा में लाइव आई थी, एंड उनको पता था अगर वो अपने आईडी से आएंगी तो मैं उनको नहीं लूंगी करके, तो शी केम विद सम अदर आईडी, तो आई टुक हर, शी केम लाइव इन द वीडियो, एंड देन शी सेड कि मैं अपने उस हैबिट से बाहर निकल चुकी हूँ, और ये और मेरे बच्चे अभी सब खुश हैं, और मेरे हुडू का सफर सक्सेसफुल हो गया। So now that is what is magic. तो hoodoo does all that. Hoodoo brings in the change which you want. तो फिर विका क्यों चाहिए, सिर्फ हुडू ही कर लेंगे, क्योंकि विका में स्थिरता चाहिए। कितने साल भटकते रहोगे, कितने साल सिर्फ हुडू सिर्फ एलेगुआ के भरोसे रहोगे, लाइफ में हमें भी तो कॉन्फिडेंटली स्ट्रांग बनना है ना, तो विका मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एंड एज आई सेड, विका लेवल 2 जब करोगे तुम लोगों को, यू विल बिकम ब्लैक मैजिक रिमूविंग एक्सपर्ट्स, यू विल नो हाउ टू वर्क विद इट। अगेन हुडू में एक और चीज क्या होता है, हुडू में श्राइन्स होते हैं, मैं मानती हूँ हुडू में खर्चे होते हैं, यू नो देयर आर यू हैव एलेकेस, यू हैव श्राइन्स, आई थिंक, लेकिन इसमें एक ही चीज क्या होती है हुडू में, कि ये जो स्पिरिट गॉड्स होते हैं उनको आप जो भी उनको ऑफरिंग देना है दो। तो मैं यमाया के बारे में बोल रही थी, तो अभी यमाया का अगर आप अब्रॉड में देखोगे तो डक को काट के ऑफरिंग में देते हैं, ठीक है। अगर कोई मुझे बोलेगा डक को काटो, मैं तो वहीं पर बेहोश होके गिर जाऊं, मैं तो नो चांस, आई कैन नॉट डू इट। लेकिन यमाया पता है किससे खुश होती है, डक से खुश नहीं होती है। उसको एक अच्छा सा वाटरमेलन लो, उसको काटो, बीच में वाटरमेलन निकाल के उसमें और फ्रूट्स भरो, और उसके ऊपर और थोड़ा वाटरमेलन भरो, और जाके नदी में बहा के आओ, इतना खुश हो जाएगी कि तुम अगली बार उसको बुलाओगे ना, इमीडिएटली आके खड़ी हो जाएगी। ना पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, पीपल थिंक कि डक ऑफर कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ऑनलाइन में, एलेगुआ के लिए हैन का गला ऐसे मरोड़ते हैं और खून डालते हैं, लेकिन वो बेचारा हमारा जो एलेगुआ है ना, उसको भुट्टे, वो जो बीच में भुट्टे सेक के देते हैं, अगर आप भुट्टा सेक के रखोगे ना, आपकी सारी बात मान लेता है, इतना इनोसेंट बच्चा। बट पीपल थिंक यू नो यू हैव टू कट दैट हैंड, यू हैव टू ऑफर हिम दैट, ऐसा नहीं होता है। यू कैन ऑल्सो वर्क विथ योर ओडिशाज विद द ऑफरिंग्स ऑफ फ्रूट्स, विद द ऑफरिंग्स ऑफ, जैसे हमारी ओया ले लो, अगर ओया को बैंगन बैंगन का भरता नहीं बनाते, बैंगन के स्लाइसेस बना के रोस्ट करके दे दोगे, खुश हो जाएगी, आपका काम करके जाएगी। व्हाट एल्स डू वी नीड, यू नो, व्हेन द स्पिरिट गॉड्स आर हैप्पी विद दीज थिंग्स। लेकिन व्हाई हुडू विद अ गुरु, व्हाई हुडू विद इनिशिएशन, क्योंकि हम सबको ये जानना जरूरी है कि हमारा वो एक ओडिशा गॉड कौन सा है। कभी कभी किसी किसी के 2 गॉड्स भी निकलते हैं, तो वो कौन है, उनके साथ जब हम काम करते हैं, we become more connected with them, we can see more beautiful miracles, क्योंकि hoodoo is not a religion, ये हमेशा याद रखना, hoodoo is magic. People who work with hoodoo, they believe in magic. जैसे हमारे hoodoo में there is a हाइजॉन, हम लोगों को क्या पता है, सारे पूरे हीलिंग कम्युनिटी में हाइजॉन ले लो, अपने साथ पॉकेट में रखो और पैसा आएगा, ठीक है, अच्छा नाम आएगा। लेकिन पता है हाइजॉन इज अ स्पिरिट गॉड,
जब आप उस स्पिरिट गॉड के साथ अच्छे से काम करोगे, उनके ऑफरिंग्स रख के करोगे, तो वो इमीडिएटली, अभी हाल ही में यहाँ पर ये जो सितंबर का बैच हुआ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, शी सडनली एंडेड अप हैविंग अ साइकिक अटैक। लिटरली वो जाके बालकनी में खड़ी होगी और बोली कि मैं अभी के अभी कूदने वाली हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे हाथ पैर सूज रहे, मुझे डर लग रहा है करके। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट शेयर द नेम्स एंड आई कैन नॉट टेल हु इट इज, बिकॉज बाकी के जो मेरे बाकी के चंट बच्चे इधर बैठे, इमीडिएटली पता चल जाएगा कौन है क्या है करके। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा हाई जॉन तो तुमने मुझसे बनवाया था, मैंने एनर्जाइज करके दिया था। तो शी सेड हाँ वो तो मैंने लिया था। तो मैंने पूछा कहाँ है वो, तो शी टोल्ड मी वेयर इट इज। फिर मैंने उनके माँ को फोन लगाया और मैंने बोला आप वो लेके उनको दे दो और एक रात आप सिर्फ उनके साथ लेट जाओ। और मैंने इसको बोला तू आज एक रात रुक जा, अगर तू ठीक नहीं होती है तो फिर देखेंगे। और मैंने उनके मम्मी को बोला कि आप ना 3 बुट्टे सेके एलेगुआ को बोल दो, ये ठीक हो जाएगी, फिर ये अपने हाथों से रिचुअल करेगी। और ओबताला को 1 ग्लास का दूध रख दो। और मैंने बोला मेरा जो हाईजॉन है उसको अपने तकिए के नीचे रख, और हाईजॉन को बोल कि मेरी ओरियाते मतलब मेरी गॉड मदर ने तुम्हें दिया है कि तुम मेरा ख्याल रखो, एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ मी देन टुमारो मॉर्निंग माय ओरियाते विल physically murder you, but I don't know how. मैंने तो यही बोल बस। And she literally, said the same statement. Morning by 8 o'clock, 15 calls in my phone. मैं अपना फोन साइलेंट में रखती हूँ till I get up, because मेरे को सुबह के चाय के बाद ही जो भी दुनिया का टेंशन होता है मैं वो लेती हूँ। बिना चाय के मैं कभी कुछ नहीं लेती हूँ। मैंने देखा कॉल्स है, मुझे तो लगा शायद कुछ तो हो गया है। मैंने फोन उठाया, she is telling me, माँ हाईजॉन ना आपसे डर गया। मतलब क्या था तेरा, हाईजॉन क्यों डरा भाई? मेरा सूजन वूजन सब चला गया। ऐसे कल रात को क्या नाटक कर रही थी? ऐसे तू रुक, तू चेन्नई आ, फिर मैं तुझे संभालूंगी। इसका जवाब मैं तुझे चेन्नई में ही दूंगी। सो दैट इज हाउ इज योर हुडू। हुडू आपको रिजल्ट देता है क्योंकि स्पिरिट गॉड्स हैं वो लोग, और उनको बस ऑफरिंग्स चाहिए, क्योंकि उनको ऑफरिंग्स, उनको इज्जत देनी पड़ती है। जैसे नाउ whoever is joined here, all you have to do is आप लोग ऑनलाइन जाओगे, you will get a यमाया का मस्त सा फोटो, you will get, just call on her, okay, offer her a watermelon and tell her कि make me at peace, give me happiness, give me joy, जो भी चाहिए ask her। उस दिन you will see some sort of a small changes happening around, क्योंकि आपने विश्वास के साथ, एंड जो ऑफरिंग्स हम लोग स्पिरिट गॉड्स के लिए रखते हैं ना, we have to discard it in the sea, we have to discard it, there is no choice। लेकिन हाँ, विका हुडू, मैंने एक्चुअली आई थिंक द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर दिस मार्च बैच वो भी यहाँ पर है। एक ने मुझे पूछा था कि मैंने लामा फेरा सीखा है, ये सीखा है, वो सीखा है, सब सीखा है, लेकिन सब सीखा है मैंने, लेकिन मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं एक काम कर, तू अभी पहले हुडू सीख ले, विका तो लेकिन सीख ले, क्योंकि तुझे विका सीखना जरूरी है तेरे लिए। विका के बिना हुडू अधूरा हो जाएगा एक स्टेज में। तो एक काम कर, पहले हुडू सीख लो, और हुडू से तुम्हारा काम होने लगेगा, तुम कमाने लगोगी, ऑटोमेटिकली तुम विका पे आओगी। लेकिन वो दोनों कोर्सेज के लिए आ रही है, बिकॉज उसको ये समझ में आ गया कि विका एंड हुडू गो हैंड इन हैंड। जैसे हमारे ये जो गोकुल बंदे, उनको भी दिमाग में यही चलता होगा, मुझे ऐसे लगता है कि मैं विका करूं कि नहीं करूं, हुडू करूं कि नहीं करूं, कौन सा करूं, कौन सा मैजिक लाएगा, कौन सा चेंजेस लाएगा। तो इसको मैं जब चेन्नई लेके आऊंगी, इसके सर पे एक टपली मार के बोलूंगी दोनों करते, बिकॉज दे बोथ गो हैंड इन हैंड। ओनली थिंग इज कि आज के जो 2 मिनट्स फास्ट फूड का वर्ल्ड होता है ना, कि मैं आज आई और कल मुझे मैजिक दिखा और परसों मेरे मेरे बैग में पैसे हुए। अंबानी तो सब लोग नहीं बन सकते, हैरी पॉटर भी नहीं बन सकते, हम लोग कलयुग में है। सतयुग में तो कोई भी नहीं है, सतयुग की बात अलग होती है, कलयुग में है। लेकिन कलयुग में भी अगर मैजिक एंड मिरेकल्स देखना है तो समवेयर हुडू विल गो हैंड इन हैंड। ऐसा लग रहा है यू आर रीडिंग माई माइंड एंड टॉकिंग। मैं सबके माइंड्स पढ़ती हूँ यहाँ पर, दैट इज द होल प्रॉब्लम। क्योंकि वी ऑल वांट मैजिक, हम सब लोग, आई एम टेलिंग पीपल आर सो मच बिहाइंड कि टुडे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हीलर्स हियर वुड हैव फेस्ड दिस। हमारे पास क्लाइंट आएंगे, अच्छा आपने स्पेल कर दिया, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला। अरे भाई अभी किया है, यूनिवर्स तक तो जाने दो, काम तो करने दो, बिकॉज उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि लाइफ में बहुत देख चुके हैं वो लोग। मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगी, मैं हीलर्स को भी गलत नहीं बोलूंगी, मैं बस यही बोलती हूँ कि 2 मिनट नूडल्स बनना आसान है, लेकिन पेट खराब होता है एंड ऑफ द डे। सो गिव इट सम टाइम, गिव इट सम एनर्जी। प्रियंका गुप्ता, अभी तो बता तेरा हुडू का जर्नी कैसा था, पहले मैं इसको पकड़ूंगी आज। डॉक्टर,
ये जब बोली ना डॉक्टर, में थोड़ा डर गई, सुई भी लगाती होगी करके, बट अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। हेलो मदरीनो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। हुडू का जर्नी तो डेफिनेटली मैं बताना चाहती हूँ, बट उससे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आपने क्योंकि एज यू नो आई हैव लॉस्ट माय मदर, राइट? वेयर डिड शी गो? आर यू देयर प्रियंका? रुक जाओ, मैं इधर देखूं। अच्छा, दिस इज नॉट इन ऑर्डर। ठीक है, आई गेस प्रियंका गॉट डिस्कनेक्टेड, शील कम अगेन। 1 second ना। Archana, you can learn Hoodoo online. Any of you can learn Hoodoo online. As I said, the initiation process. हाँ बोलो प्रियंका, कट गया था, बोलो बेटा। Yeah, I got disconnected. So as you know, I lost my mother, and I told you, and you said कि Priyanka, I'll be your godmother, don't worry. Um, but those were not only words. आपने एक्चुअल में मुझे वो प्रॉब्लम से निकाला है, and आप जानते हो मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ वो जी। प्रॉब्लम से आप ही ने मुझे निकाला है, तो तब मैं जाके खड़ी हो पाई, एंड मेरे हस्बैंड भी, राइट? हाँ, एंड मैंने इसके पति मुझे आई बुलाते हैं, बिकॉज आई बिलीव हाँ, इन मराठी आई इज मदर। एंड अगर मैं जवाब नहीं दी तो वो मुझे कभी कभी मुझसे झगड़ा भी करते हैं, वो तो सब लोग मुझसे झगड़ा करते हैं। तो वो तो एकदम हक जताते हैं आपके ऊपर हाँ कि नहीं, ये मेरी माँ ही है। ठीक है। तो एंड अदर देन दैट ना, हुडू का अगर आप मुझसे बोलेंगे मदरीनो, मुझे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आए, अमेजिंग। मतलब मेरी हेल्थ बीच में बहुत बहुत ज्यादा डाउन थी। मैं प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी उसको हील होने में काफी साल लग सकते थे। ठीक है, एंड आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट, आई स्वेयर टू आई यू एंड अलग। यस, वो प्रॉब्लम को हील करने में बहुत साल लग सकते थे। नो वन विल बिलीव इट। मैंने एलेगुआ का रोड ओपनर रिचुअल किया, जो कि हेल्थ के लिए नहीं भी था, मतलब मैंने उबातला भी नहीं जोड़ा है साथ में। आपने जो रोड ओपनर रिचुअल सबको बताया था, हाँ, वो यूट्यूब रोड में ओपनर रिचुअल मैंने किया है। 1 वीक, माँ, 1 वीक में विजिबल चेंज हुआ मेरी हेल्थ में, विजिबल चेंज। माय हस्बैंड तो वो तो शॉक में चले गए कि ये क्या हुआ। 1 वीक में मुझे वो चेंज मिला। दैट तो इज बिकॉज ऑफ एलेगुआ का एलेगुआ एंड रिचुअल, योर बिलीफ इन यस, एलेगुआ, बिकॉज एलेगुआ यस, करते हैं। तो दैट इज जस्ट वन एक्सपीरियंस जो कि एकदम ही माइंड ब्लोइंग था, बट अदर देन दैट एक्सपीरियंस मेरा एलेगुआ का हर एक रिचुअल सक्सेसफुल हुआ है। मतलब बहुत 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 सुपरफास्ट सक्सेसफुल हुआ है। तो एलेगुआ एंड ओशून से जो भी मैंने मांगा, मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने गाड़ी में प्रे किया है सिर्फ उनसे, बिकॉज ऑफ द मुझे याद कनेक्शन। है तूने बोला था। लेकिन गाड़ी में प्रे किया, एंड मुझे तुरंत उसी दिन रिजल्ट मिला, एंड नेक्स्ट डे मैंने ऑफरिंग। तो ये भी मेरे साथ हुआ है। तो इट्स बीन एन अमेजिंग वंडरफुल जर्नी, वंडरफुल जर्नी। Actually very happy that you came out of whatever was going on, and I really am happy that बिकॉज ऑफ यू, your बिकॉज ऑफ यू। your husband also, वो जिस तरह से हक से मेरे से बात करते करते I feel really happy and blessed. I am blessed that I found you all as my family. It's not नो, because of me, it is because of वी only आर Ellen ब्लेस्ड and टू Manisha. हैव यू। और अभी तुझे लेवल 2 के लिए चेन्नई आना है और विका के लिए भी आना है, I've told मैं you this. आने ही वाली हूँ, मैं आने ही वाली हूँ, 100% आने वाली हूँ। But I'm really happy. God bless you. मैंने क्यों थैंक तुम्हारा यू। नाम लिया? Because the miracle which you saw with Elegua in 1 week, I felt everyone should know. Mainly, Elegua should know कि तुमने उनका नाम लेके सबके सामने थैंक यू बोला है। क्योंकि हमारे जो स्पिरिट गॉड्स होते हैं उनका वो एक होता है। तुम लोगों को मैंने बोला है बहुत बार कि जब भी मैं एलेगुआ का वीडियो या तो हुडू का वीडियो डालती हूँ, आके थैंक यू बोलो उस वीडियो में, क्योंकि एलेगुआ तभी खुश होता है जब हम सबके सामने बोलते हैं थैंक यू। और आज मैंने तुम्हें इसलिए मदरीनो, बोला कि तुम आओ और बोलो। मदरीनो, जो 1 वीक का मैं बोल रही हूँ ना, वो हो ही नहीं सकता था जो हुआ है मेरे साथ। एलेगुआ के साथ सब पॉसिबल है। यस, एलेगुआ वो 2 मिनट का इंस्टेंट नूडल होता है जो हम सब लोग को लाइफ में चाहिए। सीरियसली सीरियसली सीरियसली, थैंक यू सो मच, थैंक नहीं यू नहीं, सो God मच। bless you. I'm happy. That's why I said कि I really wanted you to come here and thank Elegua mainly, ताकि he will be very happy that यस, you यस। appreciated his impossible making it as possible. मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ। देखिए, मेरा तो रिटेल बिजनेस भी है अलोंग विथ माय क्लिनिक। मैंने अगर किसी दिन, मतलब मेरा अगर नहीं हो रहा है ठीक से, नहीं चल रहा है ठीक से, और किसी दिन मैंने एलेगुआ को बस बोल दिया कि एलेगुआ प्लीज आज मुझे जरूरत है एंड मुझे चाहिए है, मदरीनो, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि वो चीज हुई ना हो। मुझे वो अमाउंट मिलना ही है।
100% मिलना है. It is like that. Gratitude to him. Actually, Yeah. gratitude. And I'm happy that you came today to thank him, because अभी Yeah. तुम देखोगे ये miracles और कितने multiple वो करते हैं. अभी तुम Yes. देखोगे, अभी तो तुम्हारा लाइफ शुरू हुआ है हुडू से. It's just been what, Yeah. 4 months, 5 months, Yeah. where all the Yes. magic has happened. आज इसलिए I told you come here and say thank you, because he watches everyone, and see now the changes he will bring in your life. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. बोलो श्रुतिशा. अनम्यूट. मैं भगवान नहीं हूँ और एलेगो सुनते होंगे, मैं नहीं सुन पाऊंगी. अनम्यूट. थैंक यू एलेगवा, थैंक यू माय मदरिनो. माँ, ऐसा है कि मैंने किसी का काम लिया था, जब मैं आई थी तब बहुत क्राइसिस में चल रही थी. वहां से मेरा मेरा टिकट में निकलने वाली थी, तभी मेरा पहला काम आया. मैंने अभी आपका गेट भी नहीं छोड़ा था, और वो अमाउंट ऐसी आ गई थी, तो मुझे हाश हो गई कि घर जाके मुझे पहले खाने का सोचना नहीं पड़ेगा. वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई. और उसके बाद पहला बंदा आया क्लाइंट के लिए, और उसके वहां बहुत बड़ा कोई नेगेटिव जोन था, जो मैंने ऐसे एलोवा के नाम से ले लिया. मैंने बोला वो देख लेगी, बाद में आप देख लेंगी. तो माँ, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 3-4 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन 2.25 महीने में उसका काम हो गया. अरे वाह. और उसका ऐसा था कि उसके आजू बाजू के फैक्ट्री वाले यहाँ पे सर झुकाते, वहां जो एनर्जी थी. लेकिन एलोवा ने इतना अच्छा कर दिया, वो फ्री हो गए. और उसके साउथ वेस्ट जोन में कोई जा नहीं सकता था, सब डरते थे. और उसकी हाइट्स माँ जैसे कि एक बिल्डिंग की जितनी थी, जो एनर्जी थी उसकी. तो मैं अच्छे से गई. मैंने बोला कि मैं तो हनुमान जी दादा को भी, प्रिया का, सबको बोल के गई कि देखो मुझे ये सब तो करना ही है, एक बार तो मेरे डर से बाहर निकलना ही है. हाँ, ट्रू. और वो फैक्ट्री क्लियर हो गई. अरे वाह. आज कोई नहीं है. और वहां आते जाते जो डरते थे ना, वो डरना सब बंद कर दिया. वो जैसे हम एलोवे का ऑफरिंग कैसे रखते थे, हाँ. वैसे आते जाते कोई चॉकलेट रखता था, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी एक एनर्जी थी. लेकिन वो सबसे पहले एलेगवा ने मुझे ये हेल्प किया. और अगर मैं एलेगवा का कुछ रखना भूल जाती हूँ ना, कॉफी लेके आ, ऐसे सुनाई देता है माँ. सिटी में अरे भी कहाँ है. सुनाई देता है. कुछ लोगों के घर में कॉफी गायब हुई है, और वो डर के मुझे मैसेज करते, कॉफी गायब हो गई. हाँ, अरे कोई नहीं है, चलो कुछ है, अच्छा है, आके पी के गए. सिटी क्यों नहीं है. फिर हाँ. एक बार तो माँ, अभी थोड़े दिन पहले ऐसे रखे थे उनको, ऐसे हो गए. मैंने बोला क्या मिस हो गया, क्या मिस हो गया. तो भुट्टे के मैंने 4 दाने निकाले थे उसको गुआवा में डालने. मैंने बोला गलती हो गई, इसमें से नहीं निकालूंगी, दूसरा ला के रखो, मेरे को माफ कर दे. और माँ की तरह मुझे मत घुरा कर, मुझे डर लगता है. एक लेकिन बार तो सच में मुझे याद है, चानम ने मुझे बोला कि मैंने एलेगो को पूछा तूने कोको कोला क्यों पिया. मैं रख के आती ना क्रॉस रोड में, तो मैंने छोड़ देना, आके पी के गए, मतलब तुम्हें ब्लेस करके गए. ब्लेस करके गए. और माँ, इतने इतने नेगेटिव जोन में से मैं बाहर आ चुकी हूँ, और जिसके भी घर जाती हूँ इतने नेगेटिव जोन होते हैं, लेकिन माँ मैं यूं 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 करके आ जाती हूँ, और सब डरते हैं. और सब ये सब आपकी मेहरबानी है, और गुरु की मेहरबानी है. एलेगुआ अलग की बात तो है ही. तुम्हारी और विका घर की पे सब magic पता है. और सो हुडू की सो एलेगुआ. जी माँ. और सोमवार होता है तो सबको पता है कि आज एलोगुआ का रिचुअल्स है. तो सूरज मेरा बोलता है कि गवा की जैसे वो गुआवा की करेंगे, एलोगुआ कौन लेना है, ये लेना है. सबको पता है कि मंडे कौन होता है, वो क्या क्या लेके आऊं. एक दिन माँ, सूरज ने भूल से कुछ गलती कर दिया, तो अंदर उसको गर्मी लग रही थी, तो मुझे आके बोल रहा था कि माँ कुछ गड़बड़ हुई, देख लो ना. मैंने बोले उसको सॉरी बोल दे, मुझे मत बोल. वो करता धरता है. लेकिन सच में माँ, बहुत मजा आता है हुडू में, बहुत मजा आता है सच में. ऐसा ही है, बिकॉज हुडू गिव्स रिजल्ट. एज आई सेड नो, विका एंड हुडू गो हैंड इन हैंड. बहुत सारे लोग जो हुडू करते हैं विका नहीं करते. बहुत सारे लोग जो विका करते हैं उनको लगता है कि विका से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वी विल स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. लेकिन यस, यू विल बी स्ट्रॉन्गर, बिकॉज विका के लेवल 1 में यू लर्न, यू गेट अ मैजिकल नेम. नाउ मैजिकल नेम क्यों दिया जाता है, स्पेसिफिकली बोला जाए तो, क्योंकि जैसे मान के चलो यहाँ पर प्रीति है, श्रुति है, चानम है, दीपिका है, सब लोग हो. अगर आपके ऊपर किसी को कुछ नेगेटिविटी करना हो तो आपको उस नाम से वो लोग जानते हैं. लेकिन जिस दिन आपको इनिशिएशन के टाइम मैजिकल नेम मिल जाएगा, वो नेम सिर्फ मुझे और आपको पता होगा. हम लोग अपने पति को, बच्चों को भी वो नेम नहीं देते, बताते. तो फिर क्या हो जाता है, हमारे ऑरा उस मैजिकल नेम से शील्ड हो जाते. उसके बाद अगर कोई कुछ हमारे ऊपर करता है तो वो हमें इफेक्ट नहीं करेगा, वो हमारे अंदर जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे मैजिकल नेम से हम लोग सील हो चुके हैं. और वो मैजिकल नेम कहीं ना कहीं हमें लाइफ में आगे लेता जाएगा. एंड उस मैजिकल नेम के बाद जब भी तुम लोग रिचुअल्स करोगे, जो भी करोगे, जब मेरा नाम लेके और मैजिकल नेम लेके बोलोगे, तुम लोगों को मेरा प्रेजेंस वहां लगेगा ही लगेगा. यू विल फील दैट प्रेजेंस फॉर श्योर.
एंड हुडू ऐसी चीज होती है कि ओरिशास के साथ, ठीक है चलो, एनी डाउट्स इन हुडू, वरना आई विल गिव अ फ्यू टिप्स, क्योंकि वी स्टार्टेड 8, इट्स ऑलरेडी 9:20, सब लोगों को घर पे खाना वाना भी बनाना होगा, सब लोग मुझे डांट रहे होंगे अंदर से कि अभी तक क्लास चल रहा है. anyone has any doubts in हुडू? हुडू ऑनलाइन कर सकते हो, नो डाउट. विका ऑनलाइन नहीं कर सकते हो. एंड एज आई सेड, Vika will make you strong, and Vika will keep you protected lifelong. Vika will give you a stability, confidence, and everything that you need. आप चार्जेस बता दो प्लीज दोनों का, ठीक है. अभी पहली चीज जया हैज आस्क्ड, पहली चीज विका के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है. विदाउट द सिलेक्शन प्रोसेस वी डोंट शेयर द डिटेल्स, क्योंकि विका का सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपको ऑफरिंग्स का लिस्ट और फीस दिया जाता है. हुडू का फीस चाहे वो ऑनलाइन हो या इन पर्सन हो, हुडू का फीस है 25,555, विच इज happening in March right now. हर साल सिर्फ 2 बार हुडू होता है. So people who miss March will again do only in September. They cannot do before that. मैं in between नहीं लेती हूँ, सिर्फ 2 batches लेती हूँ हुडू के. And हुडू में difference is when you come in person, you bring offerings. When you're not coming in person, you just pay the fee online, and offerings ka later on you will be explained to what has to be done. Hudu is a 3 days course. Vika is a 4 days course. But both the courses, those who want to stay in Chennai, मेरे साथ ही रहेंगे. You don't have to go out and stay. You will stay with me, and then only you will do the course with me. And दोनों courses में initiation होता है, लेकिन विका का initiation online cannot be done. हुडू का online it can be done. All right. Any other doubts other than this? Again, why do we take offerings? Simple reason is ki date of March. Okay. March 14th, 15th, 16th, 17th is Vika. 18th, 19th, and 20th is Hudu. Okay, now why we take offerings is because on your name we will be doing certain offerings. In detailed explanation मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊंगी. Only after initiation I can give. But the main thing why we take is to आपके नाम से offerings करने के लिए. And offerings courier में नहीं भेजी जा सकती हैं, इसलिए जो लोग चेन्नई आते हैं वो लोग offerings अपने साथ लेके आते हैं. Any other doubts? ठीक है चलो. तो अभी मैंने जैसे बोला, मैं ओशन का बोलती हूँ. ओशन का what you can do is, for now those who have a certain wish which has to be manifested, OSHUN is Oshun. Okay, all you need to do is take a yellow candle for Oshun, burn for her. एक ऑरेंज ले लो, एक ऑरेंज चलेगा क्योंकि क्लास में और डिटेल सिखाते. एक ऑरेंज के अंदर एक छोटा सा होल बनाओगे, ऑरेंज विद द मतलब छिलके के साथ, नॉट रिमूविंग द पील. इसके बीच में एक छोटा सा होल बनाओगे और उसके अंदर अपना पेटिशन डालोगे और एक सिनेमन बार्क डालोगे, ठीक है. और उनके लिए 5 कॉइन्स रखोगे ऑफरिंग में. हमेशा जो लोग नॉन इनिशिएट्स होते हैं वो सीधे सीधे करते हैं, जो लोग इनिशिएट्स होते हैं वो एलेग्वा को बुलाने के बाद ही ओशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि एलेग्वा हैज टू बी कॉल्ड फॉर एवरी वर्क. एलेग्वा इज अ रोड ओपनर. अगर हमने कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर भी, हाँ वनीता, बिना नॉलेज के भी मैं क्या करती हूँ, मेरा एक बेसिक वाला ग्रुप होता है जिसमें थोड़े रिचुअल्स और स्पेल्स होते हैं. मैं तुम लोगों को उस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी जहां पर वो स्पेल्स भी तुम लोग सीखोगे. जैसे स्टे विथ मी स्पेल हो गया, डी एडिक्शन स्पेल हो गया. नाउ आई डोंट नो द स्पेल्स नेम्स. थोड़ी थोड़ी चीजें जो आप कर लोगे. जया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? विका के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है जहां पर आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, आपको फिल करोगे और उसके साथ आप अपना फोटो भेजोगे विद योर डेट ऑफ बर्थ, एंड देन वी विल सेलेक्ट. हुडू के लिए सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है. हुडू का पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन जो लोग सीखते हैं उनके लिए एक क्वेश्चनर भेजा जाता है जो वो फिल करके देंगे, ताकि आई विल कनेक्ट विद देयर एनर्जीज. उनका फोटो, मतलब those who are doing online, they will send their photo, their the questionnaire, and I will check, and then I will tell them what you can what is your Orisha. In Hudu जो लोग हुडू सीखेंगे, बेसिक के फेसबुक में है बेसिक का ग्रुप, उसमें भी उनको मैं ऐड कर दूंगी ताकि यू कैन सी सारे वीडियोस ही है बेसिक में, सो यू कैन सी इन दैट इज नॉट एन इशू. फॉर ओशन रिचुअल ऑल्सो आई नीड टू पुट इन सी ऑर्डर. नहीं, ओशन के लिए एक ऑरेंज ले लो, अंदर पेडिशन डालो, सिनेमन बार्क डालो, 5 कॉइन्स रख लो अराउंड, और उनको बोलो कि वो आपका वो जो भी आपने अंदर विश डाला है वो फुलफिल करे. इसको आप क्रॉस रोड्स में रख के आओगे, या तो किसी पेड़ के नीचे, ठीक है, पेड़ के नीचे या क्रॉस रोड में. बिसाइड्स विका, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम यू? लाइक स्पेल्स, एक कैंडल स्पेल कास्टर्स कोर्स इज कमिंग प्राची in the near future, which you can learn, that has the ways to do spells.
from sitting at home. Petition, how to write, मतलब अर्चना जो तुम्हारे दिल में है लिखो, कि मान के चलो कि मेरे पति इस इशू से बाहर निकल जाए, या मुझे ये महीने में ये पैसा मिल जाए, whatever is your issue, that you can write. Now coming to, ये हो गया ओशुन का, आप इसको थर्सडे को करके देखो, you will find a good energy. एलेग्वा को मंडे कहते हैं, लेकिन एलेग्वा का जो रोड ओपनर मैंने यूट्यूब में डाला था, वो लिंक मैं आज आप लोगों को दूंगी. वो रोड ओपनर रिचुअल बहुत लोगों के लिए इमीडिएट रिजल्ट्स लेके आया है, बहुत सारे लोगों के लिए. सो यू कैन ट्राई दैट. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो लोग इनिशिएशन नहीं लिए हो वो कैसे कर सकते हैं करके. ऑलराइट. एंड देन वन मोर थिंग, वो ऑनलाइन कोर्स के लिए सिलेक्शन की, नहीं वनीता, ऑनलाइन कोर्स हुडू के लिए सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती है. फीस पे करने के बाद आपको एक क्वेश्चनर दिया जाता है, आपको क्वेश्चंस फिल करोगे और आप अपना फोटो भेजोगे, क्योंकि उस हिसाब से वी विल टेल यू व्हिच इज योर ओडिशा बाय कनेक्टिंग विद द एनर्जीज ऑफ योर फोटो एंड द क्वेश्चंस दैट यू आर आंसरिंग. ठीक है. नाउ कमिंग टू एलेग्वा का, मैं आप लोगों को वो यूट्यूब वाला लिंक दूंगी, यू कैन ट्राई दैट. एलेग्वा के साथ ओगुन. नाउ ओगुन इज one of the gods, OGU, Elegua ritual exams for kids. Yes, you can do Jyotsna, even for exams for kids you can do. Any road opener thing you can do. And एलेग्वा के साथ ओगुन हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. आई थिंक वो भी एक रिचुअल मैंने जॉब के लिए दिया था, लेकिन एलेग्वा और ओगुन क्यों कंबाइन करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. जो लोग जॉब में नहीं, वो लोग कैसे यूज कर सकते हैं. चेन्नई आकर करने से एनी एक्स्ट्रा चार्जेस? नहीं जया, एज आई सेड, नो चार्जेस फॉर अकोमोडेशन एंड फूड. That I will take care. You have to just take care of your tickets, get into the cab, reach to my home. So all that extra charges I don't take. End of the day, मैंने बोला ना, मैं आप सबके लिए माँ के तरह हूँ, तो obviously खाने पीने का तो चार्ज नहीं लूंगी. That is just out of the question. So now coming back to एलेग्वा and ओगुन. एलेग्वा के पास चाबी होती है जो जिससे वो दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अगर एक कमरा सालों से बंद हो, ठीक है, तो जब आप वो कमरा खोलते हो तो अंदर कितना डस्ट होगा, झाले होंगे, राइट, कुछ भी नहीं दिखेगा. ओगुन वो काम करते हैं. एलेग्वा दरवाजा खोलते हैं, ओगुन वहां पर पूरे साफ करके आपको सीधा दिखाते हैं कि ये आपको करना है और ये आपके लिए है लाइफ में. दैट इज व्हाट इज ओगुन. सो जब आप एलेग्वा और ओगुन के साथ काम करते, चाहे कि मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए भी ही वर्क्स. So the ritual which I have shown in the YouTube, वो भी मैं आपको वापस देती हूँ. That ritual itself you can do even for your business to flourish. क्योंकि वो रोड्स ओपन करते हैं. अगर एलेग्वा रोड्स ओपन करते हैं तो ओगुन उस रास्ते को पूरा साफ करके आपके लिए रास्ता बना देते हैं कि चलो पूरा रास्ता साफ है, तुम लोग अभी आगे बढ़ो और लाइफ में आगे जाओ. अर्चना, टाइप योर मैसेज अगेन, क्योंकि मुझे यहाँ पर चैट्स खोलना नहीं आता है. आई एम जस्ट रीडिंग एज इट कम्स. मैत्री आज डेट फॉर हुडू March 18th to March 20th. Selections are going on. Online कितने दिन और online का timing? वनीता, do one thing. WhatsApp me. I will send you the timings and the details. तो ये हो गया आपका एलेग्वा और ओगुन के साथ. Now coming to यमाया. ठीक है, यमाया के साथ सैटरडे को तुम लोग क्या कर सकते हो. एक वाटरमेलन ले लो, उसको आधा काटो, अंदर से स्कूप करो, मतलब अंदर से फल को निकालो. जो भी तुम्हारा पेटिशन हो, चाहे वो बच्चे के लिए हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी के लिए हो, चाहे वो कमाने के लिए हो, उस पेटिशन को अंदर डालो और थोड़े फ्रूट्स काट के उसके अंदर डालो. ठीक है, जैसे एप्पल, पोमोग्रेनेट, जो भी फ्रूट्स है वो डालो. थोड़ा सा हनी डालो. उसके ऊपर जो वाटरमेलन आप लोगों ने स्कूप करके निकाला था वो डालो, और फिर उसको आपको नदी में, रनिंग वाटर बेसिकली, चाहे वो नदी हो या जो भी हो, रनिंग वाटर में आप बहा के आओगे तो शी विल फुलफिल योर विश. उसके साथ आपको थोड़े कॉइन्स भी रख के आने होंगे. यू कैन कीप 5 कॉइन्स और यू कैन कीप 9 कॉइन्स. मैं इस बैच को एलेग्वा के साथ नहीं दे रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू ऑल आर नॉट इनिशिएटेड, सो देयर इज नो पॉइंट. बाकी जो लोग इनिशिएटेड है और इस बैच में, दे कैन डू, दे आर ऑलरेडी डूइंग माय यमाया रिचुअल्स एंड ओगुन का रिचुअल, सो इट इज नॉट नीडेड. जो नॉन इनिशिएट्स हैं वो लोग सीधे वो रिचुअल्स कर सकते हैं. अंडरस्टूड. For husband to complete, yes, we can do who. Yes, Hoodoo finances के लिए और ये सब चीजों के लिए काम आता है. Only thing is, I'll tell you कि Hoodoo में you cannot make your own shrines, you cannot make your own LKs, because ये सारी चीजों के लिए there is a methodology जो तुम लोग level 3 में ही सीख पाओगे, क्योंकि हम लोग हर एक चीज को उस ओडिशास के साथ बिठाते हैं. एक एनर्जी इन्वोकिंग प्रोसेस होता है जहां पर एक एबो करके दिया जाता है, एंड दैट एबो ओनली एन ओरियाते or a babaloa can do. So
मैं अपने हुडू के बच्चों को भी बोलती हूँ, कैंडल्स भी तुम लोग जो हम लोग एनर्जाइज करके देते हैं वो लोग, क्योंकि उस कैंडल्स में, हुडू में भी एक ऐसा होता है, उस कैंडल्स में हम लोग प्रॉपर से फीडिंग करके भेजते हैं. देयर इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ फीडिंग. दैट इज द रीजन आई से दैट यू पिक फ्रॉम मी. बाकी के कैंडल कोर्स के लिए, विका के लिए मैं नहीं बोलती हूँ कि मुझसे ही लेना जरूरी होता है, बट हुडू के लिए हाँ मैं बोलती हूँ कि पिक अप फ्रॉम मी, बिकॉज द एबो इज डन बाय मी एंड एबो कैन बी ओनली डन बाय एन ओरियाटिक. अगेन, when you are working on your hoodoo, your orishas, उनके ऊपर विश्वास रख के ये सारे रिचुअल्स करो, तभी वो आपकी सुनेंगे, वरना वो नहीं सुनेंगे. अगर आप ऐसे ही कुछ करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे और आपका विश फुलफिल नहीं करेंगे. क्योंकि और एलेगुआ में भी, हमारे हुडू में भी ये कहा जाता है, एलेगुआ इज अ ट्रिकस्टर. ऑलराइट, एलेगुआ विल ट्रिक यू इफ यू ट्राई टू ट्रिक हिम. ऑफरिंग्स अगर आपने बोला है कि मैं 3 बुट्टे रखूंगी तो 3 बुट्टे रखने, एक बुट्टा कम रखोगे आपका काम नहीं होगा, एक पैसा कम रखोगे आपका काम नहीं होगा. ऑल राइट. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर इज कि व्हेन यू आर वर्किंग विद देम, आपको अपने गुरु के साथ भी, जैसे विका में बोलती हूँ, गुरु का कहा पत्थर की लकीर, जितना आप गुरु के साथ कॉस्मिक लेवल में कनेक्टेड और लॉयल रहोगे, एलेगुआ विल डू योर वर्क मोर. बिकॉज एलेगुआ सेज, जो अपने गुरु के साथ वफादार नहीं रहेगा वो मेरे साथ भी वफा नहीं करेगा. तो वो ट्रिकस्टर होते हैं. सो अगेन, whenever you work with orishas, Vika gods, be very loyal. जो भी आपके गुरु, इट इज नॉट नेसेसरी, जैसे अभी मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ, लेकिन आप सबके कोई और गुरु हो सकते हैं. अपने गुरु के साथ लॉयल्टी रखो ताकि पीपल विल हेल्प यू इन दैट. ठीक है, बोलो प्रियंका. मैं यहाँ पर मदरिनो बोलना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है। मैंने आपसे शेयर किया था कि जब मैं इनिशियली कर रही थी, मेरे शुरुआत के जो 2-3 रिचुअल्स थे वो सम हाउ मुझे उसके रिजल्ट नहीं मिले थे। तो फिर आपने मुझे बोला था ये चीज, और ये मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया। जब जब फिर रिचुअल स्टार्ट किया, मैंने हर बार बोला कि मैं आपके गाइडेंस के अंडर कर रही हूँ, आपने जैसा सिखाया वैसा कर रही हूँ, एंड आपके अंडर हूँ मैं, तो उनको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। उसके बाद से मेरे सारे रिचुअल्स यस, सक्सेसफुल रहे हैं। तो दिस इज ट्रू जो आप बोल रहे हैं। yeah, because according to Elegua, if you don't have that little bit of a gratitude towards your guru, then why should I do for you? वो इमीडिएटली उसी क्वेश्चन पे उतर आते हैं कि तुम अपने गुरु के लिए थैंक यू नहीं बोलते, तुम अपने गुरु के साथ कनेक्ट नहीं, तो मैं क्यों करूं. अंडरस्टूड. ट्राई करके देखो. और विका के लिए, अगर विका टाइप ट्राई करना है, विका में क्या हम लोग सीखते हैं, वी लर्न जार्स, वी लर्न ऑयल, सब चीजें सीखते हैं. मैं आप लोगों को एक छोटा सा जार बोलूंगी जो वीकेंड टाइप आप लोग कर सकते हो. ठीक है मैम, प्लीज हेल्प. प्राची, I am talking about all the helps only which I can related to relationship and money. So try these tips and you will definitely get the results. तो नाउ विका रिलेटेड में एक जार, कोई भी एक जार ले लो. ठीक है, जार के अंदर थोड़ा सा सेज या तो थोड़ा सा पैलो सैंटो घुमा लो ताकि वो जार अच्छे से क्लेंस हो जाएगा. ऑल राइट. नाउ इनसाइड द जार, दिस इज बेसिकली रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज है तो फिर क्या कर सकते हैं. यू कैन पुट द फोटो ऑफ द पीपल हु आर हैविंग द इश्यूज इन देयर रिलेशनशिप, बीट हस्बैंड वाइफ, बीट लवर्स, बीट जो भी है. तो आप क्या करोगे, उनके फोटो डालोगे, उसके अंदर आप रोज क्वाड्स, 2 रोज क्वाड्स, एक उस मेल मेंबर के लिए, एक फीमेल के लिए. अगर आप फीमेल के लिए बना रहे तो मतलब वॉट एवर यू आर मेकिंग, 2 रोज क्वाड्स फॉर बोथ द पार्टनर्स, वो आप डालोगे. उसके अलावा थोड़ा सा कैमोमिल, अगर कैमोमिल नहीं मिलता है तो कैमोमिल टी बैग्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, काट के उसको उसके अंदर डाल दो. ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर क्यों डालते हैं, विका में कहा जाता है ब्लैक पेपर इज लाइक अ प्रोटेक्शन फॉर एनीथिंग. तो हम लोग उस रिलेशनशिप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए वी आर एडिंग ब्लैक पेपर. अदर देन दैट वी विल ऐड कोको पाउडर, जो हमारा चॉकलेट पाउडर मिलता है. चॉकलेट पाउडर क्यों ऐड करते हैं, विका के अनुसार चॉकलेट पाउडर व्हेन एडेड टू एनी रिचुअल विल एक्चुअली मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, विल हाइटन द एनर्जीज. उस जो भी आप स्पेल करते हैं उसकी एनर्जीज 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो भी आप कर रहे हो वो आपको खुशी देगा. जो भी आप जार बना रहे हो, आप किसी भी जार में डाल सकते हो, किसी भी स्पेल में आप कोको पाउडर डाल सकते हो, वो उसकी एनर्जी बढ़ाता है और उसकी हाइट, उसकी स्पीड भी बढ़ाता है उस काम के लिए. सो यू विल ऐड दैट. थोड़ा सा रोजमेरी डालोगे, रोजमेरी फ्रेश मिलता है तो फ्रेश डालो, वरना जो ड्राई मिलता है ड्राई भी आप लोग डाल सकते हो. उसके अलावा थोड़ा सा सॉल्ट, and then you will top it with sugar. And इसको आप कहीं पर रख के every Friday you can shake it
कि द रिलेशनशिप इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, एंड उसके बाजू में एक टी लाइट पिंक वाला जला दो. डू दिस, कीप डूइंग दिस. ओके, कॉल ऑन हेकाटे. विका के लिए हमेशा हम लोग हेकाटे गॉडेस को ही बुलाते हैं क्योंकि वही काली का रूप होती है. हेकाटे को बुला के एनर्जाइज करो. वंस अ रिलेशनशिप हैज बिकम परफेक्ट एंड गुड, इसको आप अपने प्लांट में भी बरी कर सकते हो या तो रनिंग वाटर में डाल सकते हो. रनिंग वाटर कैन बी एनी रनिंग वाटर, लेक, रिवर, सी, बीच, ओशन, एनी रनिंग वाटर. ठीक है, तो ये ट्राई करके देखो. और जो मैंने एलेग्वा के साथ बोला, मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप में वो भी डालूंगी, एलेग्वा वाला जो वीडियो है वो भी डालूंगी, वो भी तुम लोग ट्राई करो एलेग्वा के साथ और ओगुन के साथ. आई एम श्योर you will get results. As I said, those who want to join online for Hoodoo can join, and offline for Wicca selection process lena hi padega. There is still time. I guess we still have 15 to 20 days. तो अभी भी तुम लोग you can start making your arrangements and start coming. और जो लोग आ रहे हो मार्च में, तैयारियां शुरू कर लो, बुकिंग्स शुरू कर लो, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है और टाइम दौड़ते दौड़ते हो जाएगा. मैम द कोर्स दैट विल बी इन मार्च. वापस मैसेज चला गया. इनिशिएशन हर एक कोर्स का होता है, हिबिका का और हुडू का. जैसे मैंने बोला ऑनलाइन में हो सकता है हुडू का. ठीक है, बोलो श्रुति. मुझे आना है. नहीं, विका के लिए तुम्हारा हो चुका है तो तुम नहीं आ सकोगी. नो, हुडू के लिए तो तुमने अभी तो किया वापस. लेकिन आपके पास आना है. अभी नहीं, अभी दिसंबर में. चुप बैठो. एनी डाउट्स? नो डाउट्स. ठीक है, चलो अभी मैंने आज बहुत बात कर ली. तुम लोग भी जाके, एंड हाउ मच पावरफुल these spells will be compared to Hoodoo and Wicca. Which spells will be powerful, Prachi? I don't understand. Anything when done with dedication, first thing, will give you results. So don't work with normal spells, not normal spells. Work with the intention and dedication that, you know, शिद्दत से मांगोगे तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा, तो स्पेल को तो काम करना ही पड़ेगा. प्रियंका, you have any doubt? यस मैम. Thank you, कैसे निमिषा. हो आप? हाँ बोलो. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बेटा? चल रहा है मैम, आपका ब्लेसिंग्स है बस. मैंने आपसे ऑनलाइन हुडू किया है और नेक्स्ट में सितंबर में आपका जो वीका और हुडू है वो मैं कर सकती हूँ क्या? तुमने बेसिक हुडू किया है? जी, ऑनलाइन. ऑनलाइन में कौन सा किया है? बिकॉज बेसिक वाज हैपनिंग टिल 2 years बैक. अभी 2 साल से मास्टर्स वही चल रहा है. अच्छा, तो वही. बेसिक किया है. हाँ हाँ, तो सितंबर में कर सकते हो. ठीक है, मैं सितंबर में आऊंगी फिर, क्योंकि मार्च में थोड़ा प्रॉब्लम है. अगस्त में नहीं, बाय जून वी विल हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर विका, तब यू कनेक्ट विद मी. ठीक है मैम, थैंक यू. चलो, ओके गाइस, बाय, टेक केयर. ये वाला वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब में अपलोड करके मैं भेजती हूँ. ठीक है, चलो. थैंक यू मैम. थैंक यू, बाय.